So dear all students, now we are going to discuss about the phylum chordata. Up till now in this chapter we have discussed phylum non-chordata. We discussed 10 major phylum of non-chordate. Now we are entering into the phylum chordata. So let's start. Animal belongs to the phylum chordata are fundamentally containing notochord. So here you can go for second character. The presence of notochord, you can see this one is notochord. Here we got notochord. नोटोकोड जो पहले होता था उनके अंदर, जैसे हमारे अंदर वर्टेब्रल कॉलम है तो पहले जो कोर्डेटा थे उनके अंदर नोटोकोड होता था और नोटोकोड कार्टिलेज से बना होता है. अ डोर्सल होलो नर्व कोड, यू कैन सी दिस इज डोर्सल होलो नर्व कोड, डोर्सल साइड में नर्व कोड, ठीक है. एंड पेड ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स, these are the paid of pharyngeal gill slits for the oxygen intake and carbon dioxide outtake, and they shows organ system level of organization. organ system level of organization का मतलब होता है इनके अंदर सेल्स टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, टिश्यू ऑर्गन में कन्वर्ट होता है और काफी सारे ऑर्गन एक साथ में आके एक ऑर्गन बनता है. organ system of organization, it means in this cells are dividing and converting into tissue, tissues are dividing and converting into the organ, and organ, several organs are arranging one by one with each other and making a system. Then third, these are bilaterally symmetrical and triploblastic coelomate animal. Bilateral symmetrical means if you cut this body into in a vertical section, then it will be divided into the two equal parts. अब तो ये फोटो ऐसे ही हुई है स्लीपिंग पोजीशन में, अगर स्ट्रेट खड़ी करते हैं तो हम ऐसे कट कर सकते हैं. तो अगर हम इस एनिमल को हम वर्टिकल सेक्शन में कट करते हैं तो इनके इक्वल दो पार्ट्स हो जाते हैं, तो ये बायलैटरल सिमेट्रिकल है. एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस देयर बॉडी इज मेड बाय द थ्री जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, एंड दे आर coelomate animal. Coelomate animal means they are having a true empty cavity in which they are storing food as well as blood for circulation. So this is, they possess post-anal tail and closed circulatory system. This is the post-anal tail and almost chordate is main feature with post-anal tail. आपको एक MCQ भी आएगा इसके ऊपर, post-anal tail के ऊपर. And they are having a closed circulatory system, presence of a blood inside the blood vessels. So this is the difference between chordate and non-chordate. Chordate have a notochord, non-chordate notochord is absent because they are called non-chordate. Chordate have a central nervous system, is dorsal hollow single, and non-chordate central nervous system is ventral and solid and it is double. अब यहाँ पे chordate में देखिए, chordates are having a pharynx perforated by gill slits और यहाँ पे gill slits are absent because they are non-chordate. इतने advanced animal नहीं है ये. Yes, heart is ventral in position and heart is dorsal in position, notochord. वो भी अगर present हो तो, if it is present then it is non-chordate and then it will be at the dorsal side, but in chordate it is at ventral side. In chordate a post-anal part or tail is present, post-anal tail is absent in non-chordate. हाँ, अब हम देखते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है. अब हम वर्टेब्रेटा की तरफ जाएंगे. सो डिवीजन ऑफ chordate. Phylum chordate is actually divided into three subphylum. Phylum chordate के तीन सब टाइप पढ़ते हैं. एक होता है यूरोकोर्डेट जिसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरा होता है सेफेलोकोर्डेट और तीसरा होता है वर्टेब्रेटा. ठीक है. Subphylum यूरोकोर्डेट एंड सेफेलोकोर्डेट्स आर ऑफन रिफर्ड एज अ प्रोटोकोर्डेट एंड दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन. तो टोटल कोर्डेट में तीन कैटेगरी है, एक है यूरोकोर्डेटा, दूसरा है सेफेलोकोर्डेटा और तीसरा है वर्टेब्रेटा. याद रखिए ये पहली है यूरोकोर्डेटा जैसे हम ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, दूसरी होती है सेफेलोकोर्डेटा और थर्ड होती है वर्टेब्रेटा. क्लियर है एवरीवन? अब ये जो पहले हम यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा के बारे में देखते हैं. In urochordate, notochord is present only in the larval stage, while in cephalochordata it extends from head to tail region and it persistent through the life. तो ये जो यूरोकोर्डेट होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वल स्टेज में होती है, मतलब जब चाइल्ड स्टेज होती है तभी होती है, आगे जाके नहीं होती. लेकिन जो सेफेलोकोर्डेटा है उनके अंदर नोटोकॉर्ड हमेशा लाइफ टाइम तक रहती है. एग्जाम्पल है यूरोकोर्डेटा के एसिडिया सल्पा, डोलियोलम, एंड सेफेलोकोर्डेटा के ब्रेचियोस्टोमा, एम्फियोक्सस एंड लैंसलेट. आप सोच रहे हो कि सर इतना फास्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? मैं फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ. एक्चुअली ये जो कंटेंट है हमें इतना नहीं देखना है, हमें बेसिकली वर्टेब्रेटा के बारे में डिटेल में देखना है. इसके लिए मैंने थोड़ा स्पीड में किया, लेकिन आई होप सो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो गया होगा. डिवीजन कोर्डेटा एज ए थ्री कैटेगरी. Urochordata also called tunicata. Also second one is the cephalochordata, third one is vertebrata.
तो यहाँ पे यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा का एग्जाम्पल लिखे हुए, आप नोट डाउन करके रखना. The members of a subphylum Vertebrata possess notochord during the embryonic period, and the notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebrocolumn in the adult. तो ये जो मतलब चाइल्ड होते हैं वर्टेब्रेटा में जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर नोटोकॉर्ड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और जब उनका बर्थ होता है, चाइल्ड नहीं कहेंगे हम पहले, जब तक वो मतलब फीटस स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तब तक नोटोकॉर्ड जो है वो अंदर होता है. लेकिन जब बर्थ होता है उसके बाद वो कार्टिलेजिनस या तो बोनी वर्टेब्रोकोलम में कन्वर्ट हो जाता है. तो अब हम कोर्डेटा से वर्टेब्रेटा में ट्रांसफर हो गए. कोर्डेटा और वर्टेब्रेटा में क्या डिफरेंस हो जाएगा? कोर्डेटा के अंदर पीठ पे जो बैक साइड है वहां पे ना नोटोकॉर्ड होता था, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड ये बोनी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वर्टेब्री में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं वर्टेब्रेटा. एक्चुअली नोटोकॉर्ड एंड वर्टेब्रेटा बोथ आर बिलोंग्स टू कोर्डेट ओनली. द डिफरेंस इज दैट chordate was a soft chordate were having a soft notochord, and vertebrate are having very high, you can say high weighted, and plus it is a very thick because it is most probably made by the bone or sometime made by the cartilage. Beside the basic characters, vertebrate have a ventral muscular heart. कोर्डेट के कंपेयर में अगर हम देखें तो वर्टेब्रेट्स को मस्कुलर हार्ट है और वो वेंट्रल साइड में हो, और वो 2 चेंबर 3 चेंबर 4 चेंबर भी हो सकता है, डिपेंड करता है टाइप ऑफ एनिमल में. किडनी होती है फॉर द एक्सक्रीटरी पर्पस एंड ऑल्सो फॉर ऑस्मो रेगुलेशन टू बैलेंस वाटर एंड सॉल्ट, एंड पेड ऑफ अपेंडेजेस विच में बी फिन्स और लिम्स. तो आइए चलिए ये वाला देखते हैं, उसके बाद मैं आपको सब व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा डिटेल में. वर्टेब्रेटा आर डिवाइडेड इनटू 2 division. One is agnatha, second one is a gnatostomata. agnatha, gnatostomata. अब अग्नेथा क्या है? जिस एनिमल को माउथ जो नहीं होता है सामने वाला उसे हम कहते हैं अग्नेथा, और जिनको माउथ होता है इसे हम कहते हैं नेथोस्टोमेटा. ये वाला मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया आपको. बियर्स जो मीन्स दे कंटेन जो, लेग जो मीन्स दे डोंट हैव जो. अग्नेथा में एक ही एग्जांपल होता है साइक्लोस्टोमेटा. ये देखिए ये वाला है साइक्लोस्टोमेटा. तो मैं आपको ये यहीं पे पढ़ाता हूँ, बाकी सब हम पूरा व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे. सो अग्नेथा का एक एग्जांपल है साइक्लोस्टोमेटा, और जो नेथोस्टोमेटा है उनके 2 सुपर क्लास है. एक होता है पाइसेस मतलब फिशेस. अगर वो बोनी फिशेस है तो उसे हम कहेंगे ऑस्टियोचिट्स, और अगर कार्टिलेजिनस फिश है तो उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रियोचिट्स, बिकॉज स्टडी ऑफ कार्टिलेज इज कॉन्ट्रोलॉजी एंड स्टडी ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी. और दूसरा सुपर क्लास होता है टेट्रापोडा, जिसके अंदर 4 क्लास आते हैं. टेट्रापोडा मतलब 4 पैर वाले एनिमल. टेट्रा मीन्स 4 एंड पोडा मीन्स लेग, सो 4 लेग एनिमल. अब इसमें एम्फीबिया आते हैं. एम्फीबिया में 4 लेग होते हैं. रेप्टिलिया आते हैं. रेप्टिलिया में स्नेक आते हैं. तो उन्होंने अपने चारों के चारों लेग्स को स्किन में कन्वर्ट किया हुआ है. एव्स, तो एव्स ने अपने जो 4 लिम्स होते हैं उनको उन्होंने विंग्स में कन्वर्ट किया हुआ है, और हाइंड विंग से वो वॉकिंग, रनिंग और जंपिंग के लिए करते हैं. और मैमल्स, इन्होंने अपने 2 लेग्स को आर्म में कन्वर्ट कर दिया हुआ है. मतलब हम ह्यूमन ने, लेकिन हमारे अंदर तो काफी सारे आते हैं, जैसे बैट्स है, ठीक है, मंकी है, काफी सारे हैं. तो सभी मैमल ने लेग्स को आर्म में कन्वर्ट नहीं किया हुआ है. कुछ एनिमल है जिन्होंने चारों एनिमल लेग रखे, लाइक डॉग, कैट, यू कैन से एलिफेंट, यू कैन से डॉग, काउ, बफेलो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लेकिन हम ह्यूमन बीइंग ने 4 आर्म को डायरेक्टली 4 आर्म को जो हमारे लेग्स थे उसको हमने आर्म्स में कन्वर्ट कर लिया हुआ है. तो ये बेसिक थिंग्स है अबाउट इनके बारे में, ठीक है. तो मैं आपको सबसे पहले पढ़ाता हूँ साइक्लोस्टोमेटा, उसके बाद हम सब व्हाइट बोर्ड पे देखते हैं, क्योंकि बाकी एक्सप्लेनेशन मैं वहीं पे करना पसंद करूँगा. लेट्स स्टार्ट. मेंबर ऑफ अ क्लास टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस. मतलब ये जो मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के, जैसे ये पेट्रोमाइजोन है या तो मिक्सिन हैग फिश है, तो ये जनरली एक्टोपैरासाइट है. किसके ऊपर? कुछ फिशेस के ऊपर, मतलब कुछ फिशेस को ये खाते हैं. दे हैव इलोंगेटेड बॉडी बियरिंग 5 to 15 पेयर्स ऑफ अ गिल स्लिट फॉर रेस्पिरेशन. इनकी बॉडी काफी लंबी होती है, और इनके अंदर 6 to 15 पेयर्स ऑफ अ गिल स्लिट्स हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन. साइक्लोस्टोम्स हैव अ सकिंग और सर्कुलर माउथ विदाउट जॉ. इनका माउथ तो होता है, लेकिन माउथ में जो होता है वो नहीं होता, और माउथ टोटली सर्कुलर होता है. यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो यहाँ पे भी देखेंगे मैक्सिन और हैग फिश में. देन देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेड फिन्स. इनकी बॉडी में आपको स्केल्स भी दिखेंगे और फिन्स भी दिखेंगे. नेक्स्ट,
मतलब स्केल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे फिशेस में स्केल होते हैं ऐसे नहीं। डिवॉइड ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इनके अंदर हमें स्केल्स नहीं दिखेंगे। जैसे फिशेस में प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, टिनोइड स्केल्स होते हैं, साइक्लोइड स्केल्स होते हैं, वैसे स्केल्स इनके अंदर नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें इनको अंदर फिन्स मिलेंगे। कहा क्या कहा, देयर बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल, मतलब इनके अंदर स्केल्स नहीं है लेकिन इनके अंदर फिन्स है। क्रेनियम एंड वर्टेब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, इनके अंदर जो क्रेनियम मतलब उनका जो हेड रीजन है वो क्रेनियम है, और वर्टेब्रल कॉलम जो है वो कार्टिलेज से बना हुआ है, बोन से नहीं। Circulation is closed type, means they are also having a blood vessels through which blood is flowing, so that's called closed type of circulation. Cyclostomes are marine but migrate to fresh water for spawning, मतलब spawning का मतलब क्या, अंडे देना। तो ये जो साइक्लोस्टोम है वो मोस्ट प्रोबेबली मराइन है, लेकिन जब वो बच्चे पैदा करते हैं तब वो स्पॉनिंग मतलब स्पॉनिंग जब चाइल्ड पैदा करते हैं उस वक्त वो फ्रेश वाटर में जाते हैं, बिकॉज सी वाटर ज़्यादा सॉल्टी होता है और उनके बच्चे उनके जो चाइल्ड है वो टेम्पररी मतलब बर्थ देते से ही वो इतना सॉल्ट टॉलरेट कर सकते हैं या नहीं, ये गारंटी नहीं दे सकते, इसके लिए उनकी डेथ हो सकती है, इसके लिए वो वहाँ देते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई, वो डाई मतलब ये फिशेस, हाँ ये एनिमल जिनको हम साइक्लोस्टोम कहते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन, मतलब इनके जो लार्वा है मेटामॉर्फोसिस मतलब थोड़ा डेवलप होने के बाद फिर से फ्रेश वाटर में से मराइन वाटर में आ जाएंगे, बिकॉज देयर ओरिजिनल लाइफ इज इन मराइन वाटर। एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, you can say this is petromyzon, it is called lamprey, and second one is a myxine, this is also called as a hagfish. So dear all students, now we are going to discuss about the superclass called as the Pisces. Superclass is Pisces. Pisces means fishes. Yes, Pisces का मतलब होता है fishes. और हम फिशेस में से कौन से क्लास देखने वाले हैं? एक्चुअली सुपर क्लास इज स्पाइसेस मींस फिशेस, बट इट हैज अ टू क्लास. वन इज द बोनी फिशेस व्हिच वी कॉल्ड ऑस्टियोचिट्स, एंड सेकंड वन इज द कार्टिलेजिनस फिशेस व्हिच वी कॉल्ड देम कॉन्ट्रिचिट्स. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट. दिस इज कॉमनली वी कॉल्ड देम एज बोनी फिशेस. ठीक है, जैसे why we call bony fishes, just like this is osteo. Yes, osteo means bone, and you know the study of bone is called osteology, like a chondrology, cartilage, osteology, bone. So osteochits, chits means fishes, osteo bony fishes. Let's begin with the first character. It includes marine and freshwater fishes, and mouth is mostly terminal. मतलब ये जो कैटेगरी है ऑस्टियोचिट्स, इसमें बोनी फिशेस में मराइन फिशेस भी अवेलेबल है और बेसिकली रिवर फिशेस मतलब फ्रेश वाटर फिशेस. मैंने यहाँ पे देखो मराइन फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जांपल भी लिख के रखा है. कि मराइन फिशेस इज द एक्सोकोइटिस, इट इज कॉमनली वी कॉल्ड देम फ्लाइंग फिश. हिप्पोकैम्पस, इट इज आल्सो कॉमनली वी कॉल्ड देम एज द सी हॉर्स. सो दीज आर marine fishes, and freshwater fishes is a labio. We generally call it as a labio rohita. Commonly we call it rohu. Ketla, commonly we call it ketla, and clarius we commonly call it as a magur. These are some aquarium fishes, but I'll tell you later. But I just wanted to tell you some marines are also there and some freshwater fishes are there. Mouth is terminal in position, means mouth is at the center and it is at the terminal. Then they have 4 pairs of gills which is covered by the operculum. इनके अंदर 4 पेयर होते हैं मतलब गिल स्लिट्स के, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एंड प्लस दीज आर कवर्ड बाय द ओपरक्यूलम. ओपरक्यूलम नाम के ऑर्गन होते हैं उनके अंदर और उसके थ्रू ये कवर्ड होते हैं. मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स बताऊंगा ऑस्टियोचिट्स और कॉन्ट्रिचिट्स के बाद, उसमें आपको डायरेक्टली फोटो में दिख जाएगा. देन स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल. नाउ व्हाट इज साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल? जनरली फिशेस के ऊपर आपने ऐसी लाइनिंग्स देखी होगी, ठीक है, उनके स्किन के ऊपर. सो दीज आर द साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल्स. इनको हम कहते हैं स्केल्स. स्केल्स में भी साइक्लोइड में भी टिनोइड. यस. देन एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच मेंटेन बायोन्सी. आपने अगर बायोन्सी नहीं सुना होगा तो ये देखिए, जब हम स्विमिंग पूल में होते हैं तो हम अंदर सिंक न जाए मतलब अंदर डूब न जाए, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लोटर यूज करते हैं.
अब मान लो कोई नया बंदा है, मतलब एक नया फर्स्ट टाइम अगर कोई स्विमिंग सीखने जाता है तो तैरने जाता है, तो जैसे पानी में जाएगा तो उसे डर लगेगा डूब ना जाऊं, इसके लिए वो फ्लोटर के ऊपर बैठते हैं, तो कुछ स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, कॉस्ट्यूम के ऊपर कुछ फ्लोटर वगैरह लगा देंगे ताकि जब भी वो पानी में अंदर जाए तो वो जो उनके ऊपर जो फ्लोटर लगा होगा वो फ्लोटर उनको पानी में अंदर डूबने से बचा ले, बिकॉज उनके अंदर एयर भरी होती है और हमें पता है कि एयर अंदर पानी में डूबेगी नहीं। तो बेसिकली इनके अंदर भी क्या है, इनके अंदर एयर ब्लैडर है। मान लो आपके पास एक बलून है, उसके अंदर आपने एयर भर दिया और उसको फिर पानी के बकेट में डालो तो जाएगा अंदर? नहीं जाएगा। सिंपली लॉजिक है, इनके अंदर एयर ब्लैडर है और ये एयर ब्लैडर होने के कारण ये बायोन्सी मेंटेन करते हैं। बायोन्सी मेंटेन करना मतलब फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह पे, पानी के सरफेस के ऊपर फ्लोट होना, पानी के सरफेस के ऊपर तैरना, फ्लोट होना, इसे हम कहेंगे बायोन्सी। तो अपनी बायोन्सी मेंटेन करते हैं। स्विमिंग पूल में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब हम सीखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो बायोन्सी मेंटेन करना मतलब फ्लोटिंग करने की प्रैक्टिस करना कि हम ऊपर की सतह पे तैर सकते हैं क्या नहीं। यस, देन हार्ट इज 2 चेंबर, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। जनरली अगर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में फिशेस के बारे में पढ़ते हैं, फिशेस के बारे में सीखते हैं, तो उनमें कौन सा सर्कुलेशन होता है? सिंगल टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। सिंगल सर्कुलेशन मीन्स there is only one way of a flow of a blood because they are having only 2 chamber of heart, one upper one auricle, lower one ventricles. Yes, and they are cold blooded animal, we call them poikilothermic or poikilotherms. नोटबुक में लिख लो ये वर्ड, कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब पोइकिलोथर्म। हम कौन है? वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर जनरली कॉल्ड एज होमोथर्म्स। वार्म ब्लडेड एनिमल आर कॉल्ड होमोथर्म। वार्म ब्लडेड मतलब हमारा अगर ब्लड देखें तो ब्लड में टेम्परेचर नियर अबाउट 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो हमारा टेम्परेचर 37 है, तो हम वार्म ब्लडेड है। हमें साइंटिफिकली क्या कहा जाता है वार्म ब्लडेड को? होमोथर्मिक एनिमल और होमोथर्म्स। एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम कहते हैं पोइकिलोथर्म्स। अभी अपना बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं? लाइक फिशेस अपनी स्किल को जोर जोर से पानी के ऊपर मारते हैं ताकि उनकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म बढ़े और उनकी बॉडी में एक्सरसाइज हो तो वैसे क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर बनेगा। सो लाइक दिस वे दे आर मेंटेनिंग देयर बॉडी टेम्परेचर। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, दे हैज टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट, sexes are separate, means they are not bisexual animal, they are not hermaphrodite, and fertilization is external and they are oviparous, means egg laying animal. Now example of marine fishes are exocoetus, which is called flying fish, hippocampus we called it as a seahorse. seahorse के बारे में याद रखिए, seahorse एक ऐसी फिश का टाइप है जिसमें मेल फिश पेरेंटल केयर करती है, फीमेल फिश नहीं। मतलब मेल जो होते हैं हिपोकैम्पस वो बेबी को मतलब ग्रो करते हैं, बेबी की केयर वो करते हैं। और मैंने तो कहीं पे भी पढ़ा था कि हिपोकैम्पस में जो मेल होते हैं वही बर्थ देते हैं। यस, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट बिकॉज मैंने स्पेशली इसके बारे में इतनी पढ़ाई नहीं की है, बट आई हैव व्हाटएवर कंटेंट ऑफ नॉलेज दैट आई हैव गिवन यू कैन सर्च इट इन गूगल, माइट बी आई विल बी करेक्ट। Then freshwater fishes are Labiorhita, we commonly called rohu, Ketla we commonly called ketla, and Clarius we commonly called magur fish. And aquarium मतलब जो aquarium pot में use करते हैं beta fish, flying fish, and Pterophyllum we called it as angel fish, जो हमने basically जो orange color के angel fish aquarium में use करते हैं जो काफी कलरफुल होते हैं, ब्यूटीफुल भी होते हैं, वो होते हैं Pterophyllum angel fish. So this is about the osteichthyes, first class of super class Pisces. So guys, now we are going to discuss about the second class from the Pisces superclass. Pisces superclass is a fishes, and first class we discussed that was a what? It was a osteichthyes. Now we are going to discuss about chondrichthyes. So what does it mean by chondri? Chondri means cartilage. Yes, and chyts means fishes. So which kind of a fishes it is? It is a cartilaginous fishes. तो मतलब जैसे ओस्टियोचिट्स में जो एंडोस्केलेटन था उनका वो बोनी था, बोन से बना हुआ था, और वैसे ही कार्टिलेजिनस फिशेस में जो एंडोस्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है। ये क्लियर हो गया आपके सामने? हाँ, फर्स्ट कैरेक्टर हम देखते हैं। देयर मराइन animal have a cartilaginous endoskeleton and ventrally present mouth. They are marine animal
एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन मैंने आपको पहले ही बता दिया, एंड वेंट्रली प्रेजेंट। जैसे ऑस्टियोचिट्स में टर्मिनल माउथ था, तो ऐसे इनके अंदर वेंट्रल माउथ होता है, मतलब सामने की तरफ, फ्रंट साइड में, वेंट्रल साइड में। इन ऑस्टियोचिट्स इट वाज अ टर्मिनल सर्कुलेटेड द टॉप एंड दिस इज वेंट्रल। अब वेंट्रली मतलब ऐसे, अगर आप फिशेस को देखो तो फिशेस ऐसे होते हैं, तो उनका टर्मिनल माउथ होता है, यस, ऑस्टियोचिट्स में। और कॉन्ड्रिचिट्स में वेंट्रल माउथ, सामने की तरफ, वेंट्रल साइड। देन नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ, हमने देखा था इन ऑस्टियोचिट्स notochord was in the larval stage, and in the hair in chondrochid it is throughout the life, मतलब बर्थ से लेके जब तक डेथ नहीं होती उस फिश की, तब तक उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा। और अगर हम नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करें तो मतलब वर्टेब्रल कॉलम प्रेजेंट रहेगा, हम कह सकते हैं। गिल स्लिट्स आर सेपरेट विदाउट ओपर्क्युलम, ठीक है, जैसे हमने उनमें देखा था ओपर्क्युलम है, इनके अंदर गिल स्लिट्स है लेकिन ओपर्क्युलम नहीं। ओपर्क्युलम का मतलब क्या होता है? इट इज यू कैन कॉल्ड लीड ऑफ गिल्स। गिल स्लिट्स के ऊपर कुछ कवरिंग होता है, उस कवरिंग को हम कहते हैं ओपर्क्युलम, तो इनके अंदर ओपर्क्युलम नहीं है। नेक्स्ट, स्किन इज टफ एंड हैव अ प्लेकोइड स्केल। In ostiochids, placoid and tenoid scale both was present, and here only placoid scales are present. Teeth are modified into placoid scale. Placoid scale तो है ही उनके अंदर, और teeth भी placoid scale में convert हो चुके हैं. Then, due to absence of air bladder, they has to swim consistently to avoid sinking. हमने ये देखा था in ostiochids, air bladder was present, and air bladder was giving support to the bony fishes in the flying, in the गलती से निकल गया, in the swimming, and it was providing maintenance to the buoyancy. मतलब वाटर के सरफेस पे फ्लोट होने का जो प्रॉपर्टी बायोन्सी वो ऑस्टियोचिड्स में इजीली अवेलेबल थी, बिकॉज उनके अंदर एयर ब्लैडर था, और एयर ब्लैडर होने के कारण ये फिशेस डूबते नहीं, सिंक नहीं होते। लेकिन इनके अंदर देखिए देयर इज एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके अंदर ब्लैडर नहीं है, एयर ब्लैडर नहीं, ब्लैडर है से एयर ब्लैडर नहीं, तो ये कभी भी डूब सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि इनको ये कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली स्विमिंग करते रहते हैं। मतलब कंटिन्यूअसली अगर स्विमिंग करेंगे तो डूबेंगे नहीं, तो डूबने का खतरा काफी कम हो जाता है। यस, सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर दे आर कंटिन्यूअसली स्विमिंग टू अवॉइड रिस्क ऑफ सिंकिंग। लेकिन ऑस्टियोचिड्स में ऐसा नहीं था बिकॉज उनके अंदर एयर ब्लैडर थे। देन हार्ट हैज अ टू चैम्बर, वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल, ये कॉमन था, ठीक है, उनमें भी इनमें भी सेम है, बिकॉज सभी फिशेस में ऐसा ही होता है। एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड को साइंटिफिकली हमने क्या कहा था? यस, poikilotherms. What is poikilotherm? Cold-blooded animals are called as a poikilotherms, and actually warm-blooded are called homotherm. Homotherm भी आएगा आगे, just like a human being mammalian में homotherm होगा। Next, some of them have electric organ, मतलब कुछ फिशेस ऐसे हैं जिनको अगर हाथ लगाओ तो करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट होता है उनके अंदर, एग्जाम्पल है टर्पेडो। एंड कुछ फिशेस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पॉइजनस स्टिंग होता है, पॉइजनस स्टिंग, ठीक है, तो वो फिश है ट्राइजॉन। Poisonous fish is a trigon which have poisonous sting or poison sting, and electric fish is a trigon which is also called as electric ray, commonly electric ray कहते हैं। Sexes are separate, bisexual नहीं है, and male have a pelvic fins which have a claspers. Male के अंदर sex organ होता है, उसको हम कहते हैं clasper। याद रखो, clasper is a sex organ, clasper is sex organ. Next, they have internal fertilization and many of them are बर्थ गिविंग, डायरेक्टली बर्थ गिविंग मींस विविपेरस, और वो ऑस्टियोचिड्स क्या थे? ओविपेरस। एग्जांपल देखिए, स्कोलियोडॉन कॉमनली वी कॉल्ड इट डॉग फिश, प्रिस्टिस कॉमनली वी कॉल्ड सो फिश, कैमकार्डाडॉन, कार्कार्डॉन, यस, इट्स अ ग्रेट व्हाइट शार्क जो जनरली शार्क फेमस है। एंड ट्राइजॉन इट इज स्टिंगरे, यस, स्टिंगरे ट्राइजॉन। और ये जो है टर्पेडो, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक रे। सो दिस इज अबाउट सुपर क्लास पाइसेस एंड क्लास कॉन्ड्रिचिड्स। So dear all students, now we are going to discuss about the super class called tetrapoda. तो tetrapoda क्या होता है? Tetra it means four and poda means leg, four leg animals. Yes, now
वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लास फर्स्ट, दैट इज एम्फीबिया। एम्फीबिया का मतलब क्या होता है? एम्फीबिया आर दोज एनिमल विच आर शोइंग देयर लाइफ इन वाटर as well as showing their life on the land, or you can say terrestrial। ठीक है, तो एक तो वो वाटर में अपनी लाइफ बिताते हैं या तो टेरेस्ट्रियल ग्राउंड पे लाइफ बिताते हैं, मतलब दोनों पे बिताते हैं। यस, एम्फीबिया आर दोज कैटेगरी ऑफ अ प्लांट, दे कैन कम्स फ्रॉम वाटर ऑन द लैंड सरफेस, दे कैन इवन द रिवर्स फ्रॉम द लैंड सरफेस टू द वाटर। They are having a mechanism of respiration in water as well as on the ground। दोनों तरफ ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं। यस, अगर वो ग्राउंड पे रहते हैं तो बेसिकली ब्रीदिंग या तो लंग से करेंगे या तो स्किन से करेंगे, लेकिन अगर वो वाटर में होंगे तो गिल स्लिट्स के थ्रू करेंगे। लेकिन कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से टेक्निकली रेस्पिरेशन करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको डिटेल में ईच एंड एवरी कंसेप्ट पढ़ाता हूँ। देखिए, Amphibia is the first class of a tetrapoda superclass, and these are the animals which have dual mode of a life, means they can survive inside the water as well as on the ground surface। First character, they have a two pair of limbs। Amphibia, all amphibia you will be found that they are having a two pair of limbs। Yes, they may be aquatic and terrestrial life, just because in the water as well as ground they are living in the both life, terrestrial as well as aquatic। अगर हम ये देखें तो मैंने प्लांट में भी देखा था, देखो सर, ब्रायोफाइट्स were called as an amphibian plant। yes, but bryophytes were amphibian plant not just because they are coming from water on the ground and returning water, just because plant will not move। ब्रायोफाइट्स को हमने बेसिकली एम्फीबिया क्यों कहा था? क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ था कि Bryophytes are requiring water for completing life cycle as well as fertilization। लेकिन ये है वो एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं, जमीन पे भी आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास दोनों में रहने की सिस्टम होती है। अब हम रह सकते हैं पानी में, नो, हम ज्यादातर अपनी सांस नहीं रोक सकते हैं पानी के अंदर, लेकिन इनके अंदर वो एबिलिटी है, वो पानी में से भी ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं। सेकेंड, बॉडी डिविजिबल इनटू द हेड एंड ट्रंक एंड टेल में बी प्रेजेंट इन सम। यस, इनकी बॉडी मोस्ट प्रोबेबली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो हेड रीजन है और दूसरा ट्रंक रीजन है। लेकिन नीचे का जो पोर्शन है वो कुछ कुछ एनिमल होते हैं जिसके अंदर ये टेल है, किसी में अंदर टेल नहीं है। ठीक है, सम ऑफ देम आर हैविंग टेल एंड सम ऑफ देम आर नॉट हैविंग टेल। थर्ड, द आई हैव eyelids, just like we human beings are having eyelids, so eye is having eyelids, and tympanum is present in the air, in the ear, you know tympanum। generally our human being also have a three part in the ear, this is called external pinna or external ear, and then we have a middle ear, and then we have an internal ear। middle ear is known as a tympanum or tympanic membrane, also known as the eardrum। तो इनके अंदर भी tympanic membrane होता है, just like a frog, they are having a middle ear tympanic membrane or tympanum। Next, alimentary canal, urinary system, reproductive system all open into one common chamber, all open into one common chamber। This common chamber is called as a cloaca, which opens into exteriorly। अब ये समझ लो, इनके अंदर एलिमेंट्री कैनल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, बाद में आता है यूरिनरी सिस्टम मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, और उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये तीनों के तीनों सिस्टम की ओपनिंग एक ही चेंबर में होती है, कॉमन चेंबर में, और उस कॉमन चेंबर को हम कहते हैं क्लोका, जो कि डायरेक्टली बाहर की तरफ निकलता है। अब ये समझ लीजिए फिर से एक बार, इनकी जो एलिमेंट्री कैनल है वहां से जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलेगा वो होगा एनस, तो उनका एनस ही क्या है? क्लोका है। अब इनकी बॉडी में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है उसमें से यूरिया बाहर निकलेगा, वेस्ट मटेरियल, ठीक है, और वो भी वेस्ट मटेरियल बाहर निकलने की जगह है क्लोका। रिप्रोडक्टिव जो सेक्स ऑर्गन होगा वो भी कहां से ओपनिंग होगी उसकी भी क्लोका से ही होगी। सो एलिमेंट्री कैनल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम विल ओपन इनटू द सेम चेंबर, सेम कॉमन चेंबर, दैट इज कॉल्ड एज अ क्लोका, व्हिच ओपन डायरेक्टली एक्सटीरियरली और आउटसाइड। नेक्स्ट, respiration is by gills, lungs and through the skin। अभी ऐसा क्यों? अब जो एनिमल मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा देर पानी में रहते हैं और कुछ ही देर बाहर आते हैं तो उनके अंदर गिल स्लिट्स होंगे,
लेकिन जो एनिमल पानी में और जमीन में दोनों पे रह सकते हैं, दोनों पे ज्यादा ट्रेवलिंग करते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में, मतलब उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर लंग्स भी होंगे और स्किन भी होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ। इन द फ्रॉग, when frogs are coming on the ground, they are respiring through the lungs, and whenever they are in the water, they are respiring through their skin, and their skin is a moist skin. Such type of a respiration is called cuticular respiration. अभी फ्रॉग ऐसे एनिमल है जो पानी के अंदर रेस्पिरेशन कर सकते हैं थ्रू उनकी जो स्किन होती है वो काफी चिपचिपी होती है, बिकॉज ऑयली मटेरियल काफी ज्यादा होते हैं उनकी स्किन में। आप प्रॉपरली कैच नहीं कर पाओगे कभी भी फ्रॉग को, स्लिपरी ज्यादा होते हैं क्योंकि ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होते हैं उनके स्किन में। तो पानी के अंदर फ्रॉग अपने क्यूटिकुलर स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, उसे हम कहते हैं क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन। और जब वो जमीन पे आते हैं तब वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। देन हार्ट इज 3 चैम्बर, 2 auricle and 1 ventricle, and they are cold blooded animal, means they are poikilotherms। तो इनके अंदर हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम कैसी है, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 ऑरिकल है ऊपर वाले और एक नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। जब हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर स्टडी करते हैं तब हम सर्कुलेटरी पाथवे में फ्रॉग के बारे में भी सीखते हैं। दैट एम्फीबिया comes under the incomplete type of circulation. Amphibia comes under incomplete type of circulation. Why? Because they are having a 2 auricle and 1 common ventricle. Therefore, they are showing incomplete type of circulation. Next, sexes are separate, means they are not bisexual or they are not hermaphrodite. And fertilization is external and they are egg-laying animal, means oviparous. So this is complete topic about the class एम्फीबिया। आई होप सो आप लोगों को परफेक्टली समझ गया होगा सुपर क्लास टेट्रापोडा एंड देयर क्लास एम्फीबिया। So now we are going to discuss about the second class from the super class tetrapoda. Second class is reptilia. Reptilia means crawling or creeping animal. इनकी मूवमेंट कैसी होती है, इनकी मूवमेंट होती है क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग। बच्चे कैसे क्रॉल करते हैं वैसे इनकी मूवमेंट होती है क्रीपिंग क्रॉलिंग, दिया हुआ फर्स्ट में। सो दे शोज क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। इनकी मूवमेंट ही क्रीपिंग और क्रॉलिंग होती है। इनको हम बेसिकली मराठी में बोलते हैं सरपटणारे प्राणी, सरपटने वाले एनिमल, मतलब ऐसे ऐसे घूमने वाले एनिमल। तो इनको हम कहते हैं क्रॉलिंग और क्रीपिंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। सेकंड, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय स्केल। मोस्ट प्रोबेबली आपको ये जमीन पे ही पाए जाएंगे, लेकिन कुछ स्नेक ऐसे भी होते हैं जो पानी वाले स्नेक, जिनको हम कहते हैं पानी में ही रहते हैं हमेशा। यस, so mostly they are terrestrial but some are covered and their body is covered by the scale। इसके अंदर क्रोकोडाइल भी आते हैं, क्रोकोडाइल तो पानी में भी जाते हैं। क्रोकोडाइल एक्चुअली एम्फीबियन कैरेक्टर दिखाते हैं, लेकिन उनको हम एम्फीबियन कैटेगरी में क्यों नहीं डालते, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो क्रॉलिंग है, इसके लिए उनको रेप्टिलिया में रखते हैं। समझ रहे हैं आप? Crocodile are showing amphibian mode of life. They are remaining in the water. They are also coming on the ground. But we are considering amphibia and we are considering crocodile as a reptilia just because they are crawling animal. They are not considered as amphibia. Next, they do not have external ear, but tympanic membrane represent ear. हमने frog में देखा हुआ था, frog are having middle ear called as a tympanic membrane. So same way in this external ear means this pinna is totally absent. They don't have external pinna. So tympanic membrane is replaced by the external ear. मतलब इनके अंदर जो external ear होते हैं वो नहीं होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि सांप सुन नहीं सकते, ठीक है, सांप सुन नहीं सकते। स्नेक आर बेसिकली डेफ, सांप सुन नहीं सकते। तो ऐसे ही जो सांप में एक प्रकार रहता है कि एक ब्लाइंड स्नेक, ब्लाइंड स्नेक हमने सुना होगा, blind snake. So example of blind snake is a typhlos. आप ये याद रखो, लिख लो कहीं पे, नोट डाउन कर लो कि स्नेक जो होते हैं वो डेफ होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है क्योंकि उनके अंदर उनके पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होता, लेकिन उनके अंदर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है, जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन डायरेक्टली ईयर को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो? उनके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं, तो डायरेक्टली टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो मिडल ईयर होता है वो एक्सटर्नल ईयर के जैसे काम करता है।
और बाहर उनको कभी भी कुछ भी कान के जैसे हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। एक ये स्नेक है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड स्नेक। ब्लाइंड स्नेक मतलब ये देख नहीं सकते, ये स्नेक देख नहीं, कोई भी स्नेक सुन नहीं सकते, ये ब्लाइंड स्नेक है, देख भी नहीं सकते। अब स्नेक में क्या ऐसी फीचर होती है, जनरली स्नेक अगर कोई उनके पास में आता है तो वो उनकी स्किन के अंदर और उनके ब्रेन के अंदर वाइब्रो रिसेप्टर होते हैं, वाइब्रेशन सेंस करने वाले रिसेप्टर होते हैं, थर्मो रिसेप्टर होते हैं, टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं। उनके आसपास में कोई एनिमी आ रहा है बड़ा, या तो उनके पास में कोई प्रे आ रहा है जिनको ये खा सकते हैं, जैसे फ्रॉग हुआ, रेट हुआ, तो बेसिकली ये सेंस कर सकते हैं उसकी बॉडी का टेम्परेचर और ऐसे घात लगा के अटैक करते हैं उनके ऊपर। यस, सो दिस इज देयर मोड ऑफ अटैकिंग। Next, heart is 3 chamber. Heart is 3 chamber like the amphibia. Yes, but 4 chamber in crocodile. जैसे हमने देखा सभी के सभी एम्फीबिया के अंदर हार्ट 3 चैम्बर होता है, लेकिन इनके अंदर सिर्फ क्रोकोडाइल छोड़ो तो बाकी सबके अंदर 3 चैम्बर है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट, अगर 3 चैम्बर है तो ऑब्वियसली हमें पता है देयर विल बी 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल। सिचुएशन ऐसी होती है इनके अंदर। Yes, this is auricle and this one is ventricle. There are 2 auricle and there is a 1 ventricle. And there is a crocodile. If crocodile is there, there will be the 4 chamber like a human being. Auricle, ventricle, ventricle. 2 auricle, 2 ventricle like that. Next. See, reptilia are poikilotherm, means they are cold-blooded animal. And snake and lizard remove their skin. अब ये देखो पोइकेलोथर्मिक तो आपको समझ में आ गया, पोइकेलोथर्म मींस कोल्ड ब्लडेड एनिमल। यस, एंड स्नेक एंड लिजर्ड रिमूव देयर स्किन। अब इस चीज को हम क्या कहेंगे, तो इस चीज को हम कहते हैं इक्डाइसिस। अब ये समझ लीजिए इक्डाइसिस का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ डेड स्किन एंड रिप्लेसमेंट बाय न्यू स्किन। अभी जो क्रोकोडाइल होते हैं या तो लिजर्ड होते हैं वो जमीन पे से रेंगते हैं और रेंगने के कारण जमीन के ऊपर क्रॉपिंग करते हैं और वो क्रॉलिंग करते हैं, तो उसके कारण क्या होता है इनकी जो स्किन है ना वो काफी मतलब वेस्ट मटेरियल जैसी, कचरे जैसी बन जाती है और इनकी स्किन पूरी जब खराब हो जाती है तो अंदर से उनकी स्किन नहीं आ चुकी होती। जैसे मान लो हमें कोई जख्म वगैरह होती है, हमें कहीं एक्सीडेंट होता है तो फिर कुछ दिन के बाद हमारी स्किन खराब हो जाती है, मतलब स्किन अंदर से नहीं आ जाती और ऊपर वाली वेस्ट बन जाती। तो जैसे हम इनको निकालते हैं ऊपर वाली को तो अंदर से नई स्किन आ जाती। सेम वे स्नेक और लेजार्ड ये अपनी स्किन को रिमूव कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्डाइसिस, मींस removal of a dead skin and replaced by the new skin. It is called ecdysis. Generally, snake अगर हम देखें तो किंग कोबरा मतलब नाजा ये हर 6 महीने के बाद अपनी स्किन को रिमूव करते हैं, इसे हम कहते हैं इक्डाइसिस। नेक्स्ट, sexes are separate. Sexes are separate means they are not bisexual animal and fertilization is एक्सटर्नल। ये मेल और फीमेल दोनों अपने गैमेट्स बाहर छोड़ देते हैं और वो गैमेट्स मिक्स होने के बाद फीमेल अंदर अपने तरफ ले लेती है जाइगोट बनने के बाद। एंड दे आर ओविपेरस मींस एग लेइंग एनिमल। हमारे सामने काफी सारे एग्जांपल है। सी एग्जांपल, चिलोन और चैलोन, टर्टल, टेस्टुडा, टोर्टोइस, चैमेलियन, ट्री लिजर्ड, कैलोटोस, गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, एलिगेटरी, हेमीडेक्टिलस, वॉल लिजर्ड, छिपकली जिसे हम कहते हैं। पॉइजनस स्नेक में कौन कौन सा आता है, नाजा। नाजा का साइंटिफिक नाम है नाजा जीनस, स्पीसीज आल्सो नाजा एंड कॉमनली कॉल्ड इट एज अ किंग कोबरा। एंड देन बैंगरस, क्रेट वाइपर और ये दूसरा वाइपेरा वाइपर, ये दोनों क्रेट वाइपर कैटेगरी में आते हैं। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था हमारा रेप्टिलिया को हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया विद सम मैक्सिमम एग्जांपल एंड पूरा एनसीईआरटी में जो रेप्टिलिया दिया उसको पूरा निचोड़ लिया हुआ है हमने, तो पूरा मटेरियल आपके सामने। So dear all students, now we are going to discuss about the third class from the tetrapoda and the class is eos. ठीक है, अब आप पहले eos के बारे में important चीज समझ लीजिए। Most of them can fly because of feather and except flightless birds. मतलब अगर हम बर्ड्स में पक्षियों में देखें तो नियर अबाउट सभी के सभी उड़ सकते हैं
सिर्फ वही नहीं उड़ सकते हैं जो फ्लाइटलेस होते हैं, मतलब जो उड़ नहीं सकते, ठीक है। तो आपको रीजन बता रहा हूँ। जनरली व्हाई द बर्ड्स कैन फ्लाई? Birds have three features. Birds have three features by which they can fly. First feature I'll tell you, they have feathers. They have feathers, and that's why they can fly. Second feature, they have hollow bones. ठीक है। सबसे पहला फीचर बर्ड्स क्यों उड़ सकते हैं? क्योंकि उनके जो 4 विंग्स होते हैं, आगे वाले विंग्स, आगे वाले मतलब जो उनके पैर होते हैं, उन्होंने वो विंग्स में कन्वर्ट कर दिया, तब वो उड़ सकते हैं। और दूसरी बात, उनके जो बोन्स होते हैं वो होलो होते हैं, उनके बोन्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसके अंदर एयर कैविटी होती है। अब ये देखिए, ये बोन है, तो बोन के अंदर ये जो होल्स हैं, इसे हम कहेंगे एयर कैविटी। तो बर्ड्स क्या करते हैं? बर्ड्स इस पोर्स के अंदर एयर को स्टोर करते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके। हमारे अंदर ये जो एयर कैविटी होती है, हम उसे कहते हैं ऑस्टियोपोर्स। ऑस्टियोबोन, पोर्स, होल्स इन द बोन इज कॉल्ड ऑस्टियोपोर्स। और हम उस कैविटी का क्या यूज करते हैं? हम उसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट स्टोर करते हैं, तब हमारी बॉडी में स्ट्रेंथ ज्यादा आती है। और थर्ड जो फीचर्स होता है, दैट इज अ लाइट वेट। बर्ड्स है ना, लाइट वेटेड होते हैं, और लाइट वेटेड होने के कारण वो इजीली उड़ सकते हैं। तो ये 3 फीचर। अब कौन से बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं? विच आर द बर्ड्स विच कांट फ्लाई? देयर आर द बर्ड्स विच कांट फ्लाई जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओवरवेट। So first, there are 3 birds I'll tell you. First is ostrich. Ostrich is African bird, and then second one is kiwi. Kiwi is a New Zealand bird, and third one is, देखो third one में example यहाँ पे लिखा भी हुआ है, penguin. Penguin is generally found in the Antarctic region. Generally जो glaciers होते हैं, glaciers पे वहाँ पे पाए जाते हैं। तो birds can fly just because of feathers. Because of hollow bones, they have a cavity, and due to the light weighted, they can fly. But why other flightless bird can't fly? Because of their heavy weight. इनका weight ज्यादा होने के कारण वो उड़ नहीं सकते हैं। वो होते हैं ऑस्ट्रिच, कीवी और पेंगुइन। मैं आपको कहता हूँ कि काफी स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनको पेंगुइन तो डायरेक्ट फिशेस लगते हैं, ऐसे लगते हैं कि पेंगुइन फिशेस में आएंगे, लेकिन पेंगुइन फिशेस में वो डॉल्फिन होते हैं। ठीक है, पेंगुइन होते हैं जो ग्लेशियर्स के आसपास जो होते हैं वहां पे, और उनको हम कहते हैं पेंगुइन। मैं एग्जांपल में कुछ फोटोज बताऊंगा, तो इस वीडियो के बाद में आपको कुछ फोटो दिखेगा, आपको उसमें पेंगुइन भी दिख जाएगा। तो ये है बेसिकली फ्लाइटलेस बर्ड, ये सभी के सभी हैं फ्लाइटलेस बर्ड। मैंने यहाँ पे फ्लाइटलेस बर्ड लिखा है ना, आप उनके एग्जाम्पल लिख लो। आपको 50 MCQ जब हम सोल्व करवाऊंगा मैं, तो उसमें आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्लाइटलेस बर्ड। और कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है ओड वन आउट, मान लो आपको ऐसा पूछ लिया ओड वन आउट, ऑस्ट्रिच, कीवी, पेंगुइन, और मान लो दूसरा कुछ पूछ लिया पिजन, तो आप क्या सोचोगे? तो पिजन सबसे छोटा बर्ड है इन सब के बारे में। ठीक है, तो आपने इन सभी बर्ड्स को देखा है। मान लो कोई हम दूसरा बड़ा बर्ड ले लेते हैं, ठीक है, अब मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ बड़ा बर्ड, लेकिन कंसिडर कर लो, से फॉर एग्जांपल वुल्चर। ठीक है, तो इसको हमने काउंट कर लिया, फिर हमें क्या सोचेंगे? वुल्चर ये तो उड़ सकता है, ये नहीं उड़ सकता है। तो आपको पता है ये कौन कौन नहीं उड़ सकते हैं? तो ये तीनों उड़ नहीं सकते, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड। नाम लिख लो कहीं पे भी। सेकंड, दे possess beak and forelimbs are modified into wings. उनको चोंच होती है, बीक हमारे जैसे माउथ है, उनका बीक होता है, एंड 4 विंग्स, आगे के हाथ जो है वो विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं उनके। एंड हैंड विंग्स आर यूजफुल फॉर द वॉकिंग एंड रनिंग। नॉर्मली जो हैंड विंग्स वो वॉकिंग रनिंग में यूज करते हैं। देन स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स। आवर स्किन हैव अ sebaceous gland, sweat gland. Even though amphibia, frog were having a slippery just because of oily glands, but their glands are totally absent. So skin is totally dry because of glands, absence of glands. Endoskeleton is a fully bony. Endoskeleton is a fully bony, and long bones are hollow with air cavity. मैंने आपको यहाँ पे बताया air cavity. ठीक है? Then digestive system have a crop and gizzard. हमने कॉकरोच में भी देखा है डाइजेस्टिव सिस्टम आर हैविंग crop and gizzard, and heart is 4 chamber. All the birds are having 2 chamber of auricle and 2 chamber of ventricle. 2 auricle superior and 2 ventricle inferior. Then respiration is by lungs and air sacs are
एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू लंग्स, इनमें रेस्पिरेशन प्रॉपरली लंग्स से ही होता है और एयर की जो पाइपलाइंस है वो दोनों लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है. देन sexes are separate, means they are not bisexual, and fertilization is internal, and they are egg laying animal. Yes, egg laying animal. Example देखो, corvus commonly we called crow, then columba we called pigeon, and pisticula we called it as a parrot, struthio ostrich, pavo peacock, and aptenodytes penguin, and neopron it is called vulture. और ये मैंने आपको फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होता है, बर्ड्स की कॉमन फीचर भी बताया कि व्हाई दे आर बर्ड्स एंड व्हाई दे कैन फ्लाई. इज इट क्लियर गाइस? एक और मैं चीज आपको बता देना चाहूंगा. हाउ बर्ड्स आर लाइट वेटेड. द बर्ड्स आर लाइट वेटेड जस्ट बिकॉज राइट you can say fallopian tube and right ovary is reduced. बर्ड्स के अंदर क्या होता है, राइट फेलोपियन ट्यूब और राइट ओवरी जो होती है वो बेसिकली उनके अंदर नहीं होती है. ठीक है, उनके अंदर नहीं होती. एक मिनट, मैंने काफी टाइम के बाद ये चीज देखी, याद की है मैंने. एक्चुअली एनसीईआरटी में हमें कुछ ऐसा दिया नहीं, इसके लिए मैं बता दूं. उनके अंदर राइट ओवरी और राइट फेलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है. लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब और लेफ्ट साइड की ओवरी जो होती है वो उनके अंदर नहीं होती है. तो इसके कारण उनका बॉडी का वेट भी और कम हो जाता है, और ऐसे फीचर मेल में तो जरूरी होते ही नहीं. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर दे आर बेसिकली फ्लाइटेबल. So guys, now we are going to discuss about the last class of the tetrapoda superclass, that is called Mammalia. Mammalia में हम human being भी आते हैं. तो सबसे पहले Mammalia ऐसा नाम क्यों है वो हम देखते हैं. Mammalia, they are containing mammary gland. Mammary gland means milk producing glands. We commonly call it as a breast. Yes. So, in case of a mammalia, all the female are able to produce a milk. In case of mammalia, all the female are able to produce a milk. They are producing milk through the breast, which we also call it as a mammary gland or milk producing gland. Remember, मैं आपको एक और एक्सेप्शनल केस बताता हूं कि मेल होने के बावजूद भी वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, और वो कौन होते हैं? पिजन. ठीक है, तो पिजन मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. तो पिजन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कौन? तो पिजन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पिजन होते हैं बर्ड्स. ठीक है, लेकिन मैं क्यों बता रहा हूं? पिजन होते हैं बर्ड्स, लेकिन वो मेल होने के बावजूद भी मिल्क देते हैं. पिजन मैमेलिया कैटेगरी में आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पिजन बेसिकली मेल होने के बावजूद भी वो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब ये देखिए, मेमरी ग्लैंड आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट और यू कैन से मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड. लेट्स स्टार्ट. व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ मेमरी, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. चलिए स्टार्ट करते हैं. दे फाउंड इन डेजर्ट, फाउंड इन माउंटेन, फाउंड इन फॉरेस्ट, फाउंड इन ग्रासलैंड, फाउंड इन डार्क केव्स, and some of them are adapted to fly and lives in water. इन सभी के एक एग्जांपल में आपको यही बताता हूँ. फाउंड इन डेजर्ट. देखिए, हम है ना ह्यूमन के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम मैमल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सभी मैमल. तो डेजर्ट में कौन होते हैं? कैमल्स. फिर माउंटेन के ऊपर भी काफी सारे हैं, बर्फीली जगहों पे हैं, पर्वतों पे हैं बेसिकली. जैसे आपने मुल देखा होगा, हॉर्स और डोंकी का मिक्सचर. और हॉर्स और डोंकी ये भी बेसिकली पर्वतों पे पाए जाते हैं. और स्नो लिपर्ड भी होते हैं जो बर्फीले पहाड़ों पे पाए जाते हैं. फॉरेस्ट, पूरी फॉरेस्ट में तो एनिमल ही एनिमल है. आप टाइगर से लेकर, लायन से लेकर, लिपर्ड से लेकर, डियर से लेकर किसी को भी काउंट कर लो. फिर ग्रासलैंड में वही हो गया. डार्क केव्स में जैसे बैट्स भी होते हैं. बैट्स बर्ड में नहीं आते हैं, मैमेलिया कैटेगरी में आते हैं. सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई. कुछ एनिमल ऐसे भी है जिन्होंने फ्लाई करने की एबिलिटी है. है वो मैमल्स, लेकिन फिर भी फ्लाई करने की एबिलिटी, जैसे बैट्स. एंड सम ऑफ देम लिव्स इन वाटर लाइक अ whale fish found whale fish
found in the water, but it is a type of a mammals. Then have two pairs of limbs, have a two pairs of limbs and they are useful for the walking, running and climbing. अब इनको कर देंगे तो टू पेयर्स, जो उनका जो कुछ कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो दोनों के दोनों जो पेयर हैं, वो पेयर मतलब पेड़, जोड़ी, तो पेड़ जो होते हैं वो लेग्स के जैसे रहते हैं, जस्ट लाइक अ काउ. दे आर हैविंग अ टू पेयर ऑफ लेग्स, मींस ऑल फोर लेग्स आर यूजिंग एज अ लेग ओनली, बट वी ह्यूमन बीइंग हैज मॉडिफाइड टू लेग इनटू द आर्म. हमने हमारे दो लेग्स को आर्म के अंदर मॉडिफाइड कर लिया हुआ है. लेकिन बाकी अब देखो, मंकी दोनों चीजें कर सकते हैं, वो आर्म के जैसे भी यूज कर सकते हैं, फुट के जैसे भी यूज करते हैं, बट डॉग दे आर यूजिंग एज अ foot only, cat they are using as a foot only, rat they are using as a foot only, donkey, horse, you can say camel, they are using as a foot only. Yes, and now the limbs are useful for what? They are useful for the walking, they are useful for running, useful for climbing, also for burrowing and also for the swimming or flying purpose. Skin possess hairs and nails. हमारी स्किन में hairs भी है और nails भी अवेलेबल है. And then different types of teeth are present in a jaw and heart is 4 chamber. We have a different type of teeth. Is it true or no? See, we human being have a 32 teeth in our dentition formula or dentition formula. So these 32 teeth are divided into 4 variety, like incisor, canine, premolar, molar. Incisor, canine, premolar, molar. So we have a different ranges of teeth. Then they are homothumbs. We are homothumbs. Homothumbs का मतलब क्या होता है? Homothumbs. Homothumbs means warm-blooded animals. We are warm-blooded animals means homothumbs. और हमने अब तक पिछले में देखा था cold-blooded animal means poikilothumbs. We are warm-blooded homothumbs. Then respiration takes place by lungs. Obviously we are most probably terrestrial, so we will do respiration by lungs. अगर कोई पानी में जैसे whale fish है तो वो basically respiration करेंगे via gill slits. Then external ear is pinna. So we have external ear. We also have a middle ear and internal ear. Sexes are separate, means there is no bisexual animal and fertilization is internal. अब ये वाली चीज समझ लीजिए, इंटरेस्टिंग है. Majority of are viviparous. मतलब मेजोरिटी जो है वो डायरेक्टली चाइल्ड प्रोड्यूस करने वाले हैं, यस, जन्म देने वाले हैं. एंड सम ऑफ आर ओविपोरस, कुछ उसमें से एग लेइंग भी है. एंड कांगारू इज अ मार्सुपियल. अब कांगारू मार्सुपियल का मतलब क्या होता है? मार्सुपियल मतलब ऐसे एनिमल, मार्सुपियल का मतलब होता है ऐसे एनिमल जो एनिमल अपने बच्चे को जन्म देने के बाद फिर से अपने बॉडी में मतलब ब्रूड पाउच में रख सकते हैं. अब आपने मार्सुपियल कांगारू में देखा होगा, कांगारू का बच्चा बाहर निकल के आसपास में खेलते रहते हैं और खेलने के बाद फिर से अपने माँ के पेट में आ जाते हैं. मतलब उनकी माँ का जो पेट है वो कम से कम 4 से 5 साल तक उनके लिए वो एक घर जैसा होता है, तो उसे हम कहते हैं मार्सुपियल. कांगारू आर मार्सुपियल. कांगारू हैव एबिलिटी after giving a birth, they shows this one kind of a brood pouch for 4 to 5 years. Their child comes out and play outside and then return back to the mother's, you can say, brood pouch or pouch like structure. It is called second, you can say second uterus of a kangaroo. It is also called second uterus kangaroo or brood pouch. So this is about the Mammalia, class Mammalia and super class Tetrapoda. मैं इसके एक एग्जांपल फिर से आपको लिख के बता रहा हूँ बिकॉज मेरे पास स्पेस कम थी. So guys, these are some examples like oviparous and viviparous. एग देने वाले और बर्थ देने वाले डायरेक्टली. सो एग देने वाले जो होते हैं ऑर्निथोरैंचस प्लेटिपस, और ये बर्थ देने वाले देखिए मैक्रोपस कांगारू, पेटेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलस कैमल. मतलब ये साइंटिफिक नाम है, ये उनकी कॉमन नाम है. ब्रैकेट में जो है वो कॉमन नाम है. कैमल साइंटिफिक नेम, कैमल इज अ कॉमन नेम. मैकाका मंकी साइंटिफिक नेम, रेटस कॉमन नेम रेट, कैनिस डॉग, फेलिस कैट, एलिफेंस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डॉल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, देन बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल,
दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल जो होगा वो होता है ब्लू व्हेल, साइंटिफिकली बेलेनोप्टेरा. पैंथेरा टाइगरिस, टाइगर. बेंथेरा लियो, लायन. So this is about the super class Tetrapoda and class Mammalia. So dear all students, now we have finished our complete chapter number 4, Animal Kingdom from the 11th standard CBSE. So in this topic I am going to tell you about the revision of a complete chapter in just only 10 to 15 minutes. Okay. So what was the kingdom Animalia? Actually, R.H. Whitaker has classified every organism into 5 domains, such as the Monera, Protista, Plantae, Animalia and Fungi. Out of them we are going to discuss about the Animalia. तो Animalia कौन होते हैं? All the members of kingdom Animalia are eukaryotic, multicellular, heterotrophic consumer organism. जितने भी मतलब एनिमेलिया है, जितने भी एनिमल्स है वो सभी के सभी यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब उनके साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है. सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर होते हैं. एनिमेलिया में यूनिसेल्यूलर कोई भी नहीं है और सभी के सभी मल्टी सेल्यूलर है, हेटेरोट्रोपिक है, प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं और कंज्यूमर रहना उनका लाइफस्टाइल है. They are containing a well-developed nervous system. It's not compulsory that everyone is containing well-developed nervous system. So nervous system may be central, may be peripheral, may be autonomic. May have a ventral heart or maybe have a dorsal heart. किसी में हार्ट के चैम्बर 2 होते हैं, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 13 चैम्बर भी होते हैं, जैसे कॉकरोच होते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही बेसिकली इनके फीचर्स है. एलिमेंट्री कैनल में भी कंप्लीट, में भी इनकम्प्लीट. Excretion may be by kidney, may be by protonephridia, may be by nephridia, may be Malpighian tubule, green gland, etc. etc. तो ये कुछ फीचर्स एनिमल के बारे में, इनके बारे में डिटेल में देखते हैं. Basically, all the animals are divided into 2 main categories, and these 2 main categories are chordate and non-chordates. What are the chordate and non-chordate? Non-chordates are those who don't have a vertebral column or notochord at the feet. एंड chordates are those who have a notochord और vertebral column at the feet. जिनके अंदर notochord नहीं है वो नॉन chordate है, जिनके अंदर है वो chordates में आते हैं. अब नॉन chordate में बेसिकली 30 फाइलम है, तो उसमें से 20 माइनर फाइलम है और 10 मेजर फाइलम है. एंड द लिस्ट ऑफ 10 मेजर फाइलम्स आर फाइलम पोरीफेरा. यस, फाइलम पोरीफेरा मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बताऊंगा, तो बेसिकली यहीं पे देख लीजिए. फाइलम पोरीफेरा, इट इज अ फर्स्ट वन. देन फाइलम you can say Cnidaria, phylum Ctenophora, phylum Platyhelminths, phylum Aschelminths. Then phylum Annelida, phylum Arthropoda, phylum Mollusca, phylum Echinodermata and phylum Hemichordata. These are 10 major phylum. Then if you talk about the chordates, so chordates are divided into 3 categories. First they are divided into 3 categories like Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. Vertebrata are further divided into 2 categories. Agnatha and Gnathostomata. Agnatha only one example. Like means it have only one class. You can say Cyclostoma, Cyclostomata. It has a 2 example like Petromyzon and hagfish. Yes, Petromyzon and hagfish. Then Gnathostomata have a 2 category. Gnathostomata have 2 category, means 2 superclass. First superclass is Pisces, which have 2 type of fishes. Pisces means fishes. It has a 2 type of fishes. First one is a chondrichids called cartilaginous fish. Second one is osteochids means bony fish. First, second doesn't matter. They are 2 category. And then superclass second one is a tetrapoda, which have 4 classes like amphibia, dual mode of life. Eos means bird. Reptilia means crawling animal or creeping animal, and then a mammalia, milk producing animal. So this is classification. We discuss about 9 different criteria for the classification of animal, or you can say 9 basis of classification. First one, number of germ layers. If an animal possesses 3 germ layers like ectoderm, mesoderm, endoderm, then they are called triploblastic animal. If an animal possesses only 2 layers, outer ectoderm and inner endoderm, then they are called as a diploblastic animal. This is number of germ layer. Second, blood type. If an animal have a blood
if an animal's blood is flow inside the blood vessel, then it is called closed type of circulatory system. And if a blood of animal does not flow in blood vessel, it remain in the empty cavity, then it is called open type of circulation or lacunar type of circulation. Yes. Then body, or you can say level of organization. Third one, there are certain organisms which are having only cellular level of organization. It means their cells are dividing, but they are not forming a tissue. They are showing cellular level of organization. Then there are organisms which are showing tissue level organization. Means cells are getting divided and forming a tissue. It's called tissue level organization. Then there are certain organisms which are showing advanced, called organ level of organization. Means cells are getting divided, forming a tissue. Tissues are getting converted into organ. That's called organ level organization. And there are certain organisms which are also showing system level of organization, like we human beings are showing system level of organization. We call organ system. Means cell divide, form tissue, tissue forms organ, and organ arrange into the sequence in system, turn into the organ system level of organization. ये तीन हुए. Then symmetry, body symmetry. If you cut the particular animal in any plane, if they get divided into if they get divided into equal parts, it's called symmetry or body symmetry. There are three types of symmetry. Bilateral symmetry. If you cut the particular animal in vertical section, if their body get divided into two parts, it is called bilateral symmetry. If you cut particular animal in vertical section or horizontal section, or vertico-horizontal or horizo-vertical, if they get cut into two equal parts, then it is called radial symmetry. Yes. And if you cut a particular animal in any plane, either vertical or either horizontal, if they do not get divided into equal part, it is called, yes, it is called asymmetry. Bilateral symmetry, example like cockroach, we human being, fishes. A radial symmetry like a starfish, octopus. And asymmetry like a sponges belongs to porifera. This is fourth criteria. Then coelom. Between the intestine and our body wall, between intestine and our body wall, if there is a cavity is present, true cavity is present, then it is called body coelom, or you can say empty cavity. Now there are three types of coelom: acoelomate, coelomate, and pseudocoelomate. What is meant by coelomate? If there is a empty cavity is available, which is responsible for storage of food and transport of a blood, it will be called as a coelomate. And if cavity is available but there is no use, means cavity is present but there is no use for storage of food as well as flow or transport of a blood, then it is called as a pseudocoelomate. And if cavity is totally absent, then it is directly called acoelomate. Coelomate, cavity is present and it is functional. Pseudocoelomate, cavity present but non-functional. And third one is acoelomate, directly absence of cavity. This is fifth one. Then you can say body segmentation. There are certain organisms, like an organism belongs to the Annelida, like earthworm. They show their body made by the small setae, or you can say they show small body called small segments called as a setae or metamers. And there are forming around 100 to 120 segment in an adult earthworm, and it is called body segments, or formed by the segmentation or metamorphosis. It is body segment. It's the fifth one. Sixth one, body support. Generally our body is getting support from the skeleton, and there are two types of skeleton: exoskeleton and endoskeleton. Now in human being, skeleton is located inside and skin is outside, so it's called as a endoskeleton. Whereas exoskeleton means bones are located outside and skin is located inside, it is called as a exoskeleton. This is sixth number character. Then we discuss about notochord. If a notochord is present, then it is called chordate. If it is absent, then it is called non-chordate. This is the seventh number character. Then total there was a 9. We discuss about the germ layer, we discuss about the symmetry, we discuss about coelom, we discuss about support, and we also discuss about you can say segmentation. We discuss about number of notochord, and then we discuss about now eighth one is you can say body plan. What does it mean by body plan? If an animal have a complete digestive system, they are showing tube within tube body plan because of two opening. One opening is considered as a mouth for intake of a food, and another opening considered as the anus as a ejection of a waste material, also called defecation.
मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म में 2 ओपनिंग है तो हम उसे कहेंगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर किसी के अंदर सिर्फ एक ही ओपनिंग है जो माउथ और एनस दोनों का काम करती है तो उसे हम कहेंगे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल्सो कॉल्ड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर एनिमल शोज ओनली सिंगल ओपनिंग एज अ माउथ एंड एनस बोथ, देन दिस इज कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ठीक है, तो ये इतने कैरेक्टर हो गए। कौन सा कैरेक्टर बच जाता है? जर्म लेयर्स भी हो जाए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी हो गया, सिमेट्री भी हो गई, सिलोम भी हो गया। ओके, इतने ही कैरेक्टर है बेसिकली। ठीक है, तो ये इतने कैरेक्टर हैं। ये सभी कैरेक्टर हम क्या कहते हैं? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑल्सो वी कॉल्ड इट एज अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल द एनिमल्स। ठीक है, तो हमने ये बेसिकली देख लिया। अब मैं आपको सभी फाइलम है उनके बारे में एक एक लाइन कैरेक्टर बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबको मैंने डिटेल में चैप्टर में डिस्क्राइब कर ही दिया हुआ है। ठीक है, हम रिवीजन देख रहे हैं। सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा। व्हाट इज पोरीफेरा? पोरीफेरा आर दोज ऑर्गेनिज्म which are having a pores, holes on the skin, holes on the complete body। इनके अंदर 2 प्रकार के ओपनिंग हो सकते हैं। एक तो होता है ऑस्टिया और दूसरा एक ऑस्टिया होता है बेसिकली जिसके अंदर वाटर एंट्री करते हैं। ठीक है, ये पोरीफेरा पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं। फिर नाइडेरिया, ऑल्सो नोन एज सिलेंट्रेट्स। नाइडेरिया को हम सिलेंट्रेट्स भी कहते हैं। इनके अंदर पॉलिप्स और मेडुसा ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा हुआ था टीनोफोरा। ये सबसे छोटा फाइलम है, सबसे छोटा, और इनको हम कॉम जेलिस और वॉलनट्स भी कहते हैं। कॉम जेलिस और सी वॉलनट्स भी हम कहते हैं। उसके बाद हमने देखा प्लेटीहेल्मिन्स। They are also called as a flatworm because their dorsal side and ventral side both are flat. That's why they are called as a platyhelminths और flatworms। उसके बाद एस्केलमिन्स, इनको हम राउंडवर्म भी कहते हैं क्योंकि इनकी पूरी बॉडी राउंडेड शेप में होती है, राउंडवर्म। उसके बाद हमने देखा एनिलिडा। एनिलिडा बेसिकली लाइक एनिलिडा का मतलब होता है एन्यूलस, छोटे रिंग जैसे फॉर्म होना एनिलिडा। लाइक अर्थवर्म में रिंग्स होते हैं, एनिलिडा। और उसके बाद हमने देखा अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा क्या होते हैं? अर्थ्रोपोडा आर जॉइंटेड लेग एनिमल, मींस अर्थ्रो मींस जॉइंटेड एंड पोडा मींस legs, so they are having jointed legs. Like a maximum animal among the animal world belongs to the arthropoda phylum. जितने भी इस दुनिया में एनिमल हैं उन सभी में से नियर अबाउट सबसे ज्यादा अगर देखें तो वो अर्थ्रोपोडा में होते हैं, अर्थ्रोपोडा में। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा मोलस्का से 8th नंबर फाइलम। तो अर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का सीक्वेंस में भी आता है और अर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा एनिमल है। सेकंड नंबर जो होता है जिसमें सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा एनिमल है वो है मोलस्का क्लास। ठीक है, मोलस्का सॉफ्ट एनिमल जनरली बेंथोनिक, नीचे पानी के सी लेवल में नीचे की तरफ होते हैं जनरली। उसके बाद हमने देखा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा मतलब इकाइनो मीन्स स्पाइन, डर्मा मीन्स स्किन, इकाइनोडर्मा मीन्स स्पाइन ऑन द स्किन। उसके बाद हमने देखा हेमिकोर्डेटा। Hemichordata where earlier it was classified in the chordate because it was having notochord, but it was then you can say understood by the scientists that it is having only half chord. So why not to put it into the you can say non-chordate, but it was giving a separate phylum. It was called hemichordate, means half chordate. So it is a link between the earlier non-chordates and advanced chordates. ओके, उसके बाद हमने देखा वर्टेब्रेटा। वर्टेब्रेटा फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन ग्रुप लाइक यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टेब्रेटा। एंड वर्टेब्रेटा आर मेनली डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरी लाइक यू कैन से अग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा एंड नेथोस्टोमेटा। अग्नेथा में बेसिकली साइक्लोस्टोमेटा होते हैं, पेट्रोमाइजोन और हैगफिश एग्जाम्पल है उनके। और नेथोस्टोमेटा में 2 कैटेगरी आते हैं। फर्स्ट वन Agnetha means those who don't have a jaw, and Nephostomata those who bears jaw, those who have jaw. And Nephostomata have a 2 category like a Pisces means fishes, which have 2 class. Like a Pisces is a super class, and class is a chondrichids and osteochids. What is osteochids? जिस फिश का एंडोस्केलेटन बोन से बना होता है उनको हम कहते हैं osteochids. Osteochids are those fishes whose skeleton is made by endoskeleton is made by bone. They are called bony fishes or osteochids. And then chondrochids, the fishes in which endoskeleton is made by cartilage, it is called cartilaginous fishes or chondrichids. उसके बाद हमने देखा tetrapoda is the super class and has a 4 classes like amphibia, reptilia, aves and mammalia.
Amphibia. Amphibia are those organisms which are showing their dual mode of life. They can survive in water as well as on the ground. They can breathe in the water as well as on the ground. They are amphibia. Then reptilia. Reptilia are creeping or crawling animal. They are creeping or crawling animal. They are basically having a three, you can say, chamber of heart, but except crocodile. Crocodile is having 4 chamber of heart. Crocodile is looking like behaving like an amphibia, but they belongs to reptilia because of their movement method of locomotion. You can say creeping and crawling type. Then aves, birds. Birds have got the ability to fly just because of presence of feather and their hollow bones which contain cavity for storage of air. And third, they are also containing what? They are containing only right side ovary and fallopian tube. Left side ovary and fallopian tube is reduced just to reduce weight. Okay. And then mammalia are milk producing animal because they have a mammary gland, milk producing gland, or we commonly call it as a breast. And there are mammalia can found in desert, can found in desert like camel, can found in the forest like a number of animals are there in forest. You can say leopard, tiger, lion, etc., etc. They are also found in the caves like you can say bats. They are also, some of them ability to fly also like a bat. Some of them have adopted the ability to survive in water like a blue whale, one of the most giant animal on the earth. And we human beings have ability to survive on the terrestrial ground. Clear? Most probably they are having a 4 chamber of heart, but it may be variable as per the species found in the phylum Mammalia. Okay. So it was about the full revision. Now we are going to discuss about the MCQ. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा वीडियो लेके आया हूं जो है चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम 11th स्टैंडर्ड सीबीएसई से, और ये 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को कवर करेगा पूरे के पूरे चैप्टर में से। एंड फॉर दिस नीट प्रिपरेशन टू, इफ यू वांटेड टू पास अ नीट, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो जस्ट बिकॉज ये वीडियो नहीं एक सक्सेस का फॉर्मूला है। बायोलॉजी 360 मार्क्स का होता है और आप 360 में से 360 भी कवर कर सकते हो। बेसिकली किंगडम एनिमल में हम क्या पढ़ते हैं? वी आर लर्निंग दी अराउंड 8 to 9 क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, एंड देन फ्रॉम पोरीफेरा, नाइडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, मोलुस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, हेमिकोर्डेटा, and you can say echinodermata, and afterwards we are learning about the pisces, chondrichid, osteochids, and then amphibia, एओस, रेप्टिलिया एंड मैमिलिया फाइनली। तो इतने सारे टॉपिक में से मैं 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को आज कवर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन वन बाय वन। सो क्वेश्चन फ्रंट ऑफ अस, फर्स्ट वन इज इन अ प्लेटिहेल्मिन्स डाइजेस्टिव सिस्टम इज इनकम्प्लीट बिकॉज। तो प्लेटिहेल्मिन्स में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट क्यों है वो हम देखते हैं। इट एब्सॉर्ब फूड फ्रॉम जनरल बॉडी सरफेस, नो, that does not absorb food from general body surface. It has sucker and hook in parasitic form, but that is not related to digestive system. It has only one opening that serve as a both mouth and anus. Yes, so digestive system इनके अंदर incomplete होती है, मतलब blind से एक body plane होती है just because they are having only one opening which work as a mouth as well as anus. So answer of question number 1 is a C. Moving towards the question number 2. So conversion of larva into adult is called. So larva एक ऐसी स्टेज है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में लार्वा होते हैं जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं। So larva into adult stage is basically called metagenesis, no, metastasis, no, metamorphosis. So metamorphosis is the correct answer. Metamerism is basically related to segment formation. So इसका आंसर हो जाता है C, metamorphosis. क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री इज शोन बाय, सो सिलेंट्रेटा मीन्स नाइडेरिया, टीनोफोरा मीन्स कॉम जेलिस एंड इकाइनोडर्मेटा. They all are actually showing radial symmetry. Radial symmetry means when you cut any animal in any plane, either vertical or horizontal, their body is going to divide into equal parts. So that's called radial symmetry. So radial symmetry shown by Coelenterata, Ctenophora, Echinodermata, all. So answer would be
D. Moving towards the question number 4, triploblastic organization and bilateral symmetry starts from which phylum during evolution? तो हमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए और बायलेटरल सिमेट्री. ट्रिप्लोब्लास्टिक when animal shows 3 layer, ectoderm, mesoderm, endoderm, and bilateral symmetry when you cut any animal and their body get divided into 2 equal parts by vertical section, they are bilateral. So इसका आंसर हो जाएगा platyhelminths. Yes, porifera, coelenterata, esculents नहीं, platyhelminths. So answer of question number 4 will be D, platyhelminths. Question number 5. In some animal group, the body is found divided into compartment with a serial repetition of at least some organ. This characteristic feature is named as. So ऐसे कौन से characteristic feature है जिसमें छोटे छोटे segment होते हैं? तो I think so question number 2 और 3 में मैंने इसका आंसर दिया था आपको. So answer of this question will be metamerism. Question number 6. The basic fundamental features that enable us to classify animal kingdom is. A basic fundamental feature that enable us to classify animal kingdom is level of organization and coelom. Yes, this is actually there. Cell organization and body symmetry. This is also there. Segmentation and notochord. तो segmentation notochord ये specially NCERT में additional दिया हुआ है. So answer I think so will be all because guaranteed two answer option तो match हो ही रहे. Third भी match हो रहा है. Second में symmetry. So D will be the correct answer. So question number 6 answer is D. Moving toward question number 7. So in sponges, spongocele is lined by. As you know that sponges basically belongs to the porifera. और पोरीफेरा में हम कोइनोसाइट नाम का एक सेल्स देखते हैं जो डाइजेस्टिव मैकेनिज्म में काम आता है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 8. मैच द कॉलम 1 विथ कॉलम 2. हमें कॉलम 1 और 2 को मैच करना है. तो यहाँ पे देखिए ये जो गोर्गोनिया है दैट इज मैचिंग टू ब्रेन कोरल जेल पोर्चुगीज मैन सी फैन को मैच करता है. यहाँ पे सी फैन इज गोर्गोनिया. So A is matching to 5. A is matching to 5. A matching to 5. ये तीन में आंसर दिया हुआ है तो हमें इन तीनों के बारे में सोचना है. ए ऑप्शन नहीं आएगा इसका. फिर एडमेशिया इज बेसिकली द सी एनिमोन. एडमेशिया B is matching to the C anemone. Fourth one. So where fourth is matching? It is matching in B and D. So now C is also gone. अब हमें B और D के बारे में सोचना है. फिर इसके बाद अगर हम ये देखें तो फाइसेलिया, मैंडेरेनिया इज बेसिकली मैचिंग टू ब्रेन कोरल मैंडेरेनिया 1. सो यहाँ पे देखिए यहाँ पे C इज मैचिंग टू द थर्ड वन पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर. सो पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर जो होते हैं वो जनरली होते हैं फाइसेलिया होते हैं. सो फाइसेलिया D मस्ट मैच टू थर्ड. तो यहाँ पे B ऑप्शन में सभी के सभी करेक्ट आ रहे हैं. So let's see. Yes, B is the correct answer of question number 8. So moving towards the question number 9. Correct flow of a water current in sponges. Sponges belongs to the porifera and their correct flow is ostia is the one organ through which water comes in that is a spongocele, and osculum from which water goes outside or waste goes outside. So here answer will be ऑस्टिया. यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन ऑस्टिया में अंदर आता है, ऑस्टिया के थ्रू बाहर नहीं जाता है. तो ऑस्टिया, स्पॉन्जोसेल, ऑस्कुलम आउटसाइड. सो सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10. बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी इज वेल मार्क इन. सो बायोलुमिनेंस प्रॉपर्टी जनरली फाउंड इन द ब्रेचियो आई थिंक. Yes, bioluminescence is a property which is found in a Ctenophora, which is a small phylum. Only 5 to 6 characteristics are given in our NCERT. Ctenophora which are also called as a comb jellies. So Ctenophora will be the correct answer. Yes. Question number 11. Corals are the members of. तो coral किसके members होते हैं generally? Corals neither they are member of platyhelminths nor they are member of porifera. Or basically corals are not chordates, they are coelenterata. So C will be the correct answer. Question number
12 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली. हमें कुछ स्टेटमेंट पढ़ने हैं. हेयर वी आर टेकिंग आउट अबाउट, मतलब किसके बारे में ये डिस्कशन चल रही है, दोनों तीनों कैरेक्टर हमें वो देखना है. हुक एंड सकर आर प्रेजेंट इन फॉर्म्स. हुक एंड सकर, hook are present in actually hook sucker are present in platyhelminths. Some of the absorbed nutrient from the host directly through their body surface. No, it is platyhelminths. Fertilization is internal development through the many larval stages. Yes, here we are talking about the platyhelminths. Correct. क्वेश्चन नंबर 13 फिर से वैसा का वैसा ही है. हमें रीड करके स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. Here triploblastics are Aschelminths. Alimentary canal is complete with a well-developed muscular phalanx. An excretory tube removes the body waste from the body cavity through the excretory pores. Correct है. They are dioecious no. Fertilization is internal. They are talking about arthropoda or Aschelminths, but I think so they are talking about Aschelminths. Arthropoda तो नहीं आएगा because they don't have excretory waste product through their excretory pore. So answer will be in arthropoda excretory is through the Malpighian tubule. So they are talking about Aschelminths. C. Question number 14. True segmentation of the body is first observed in. True body segmentation. अगर हम यहाँ में true body segmentation find out करें तो platyhelminths are flatworm, Aschelminths are roundworm. Any lead are having a true body segmentations. So true segmentations are found in any lead only. चलिए डिस्कस करने की जरूरत नहीं, any lead ही होते हैं. Question number 15. Excretory organ in the planaria is. तो प्लेनेरिया के अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? सो इन प्लेनेरिया एक्सक्रेटरी ऑर्गन इज अ फ्लेम सेल्स आल्सो कॉल्ड सिलेनोसाइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द excretory product and their elimination, that time also this option comes. So flame cells or selenocytes are excretory organ of planaria. Question number 16. Animal having a dorsoventrally flattened body. Dorsoventrally flattened bodies are obviously platyhelminths. There is no need to discuss much because platyhelminths means flatworm. Dorsal and ventral both the side they are flatworm. Question number 17. The largest phylum of the Animalia is. We know that मतलब मैं जब आपको पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको कहा था largest phylum among the all major phylum is about Arthropoda. Arthropoda is a maximum phylum which have maximum species. Question number 18. The most distinctive features of Echinodermata is. Echinodermata का सबसे important feature क्या है? So presence of endoskeleton on calcareous ossicle, no. Absence of excretory system, नहीं. Excretory system होती है. Presence of water vascular system. Water vascular system is present in Echinodermata which make them separate from the other one. So C is the correct answer. Question number 19. Which is an sanguivores? What is a sanguivores, guys? Sanguivores means blood sucker. So जो मेल कॉकरोच होते हैं वो ब्लड सकर नहीं होते हैं, लेकिन फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं वो होते हैं ब्लड सकर होते हैं. बिकॉज आपने देखा होगा कि जनरली मलेरिया इज कॉज ड्यू टू द प्लाज्मोडियम. यस, but it is transferred by the female mosquito called as a female Anopheles mosquito. So female Anopheles mosquito suck the human blood. So blood suckers are called as a sanguivore. और leech जो animal है वो भी blood suck करता है. So B and C means both B and C will be the correct answer. D option is correct. Question number 20. In mollusca the general body cavity is. mollusca के अंदर general body cavity कैसी होती है? So in mollusca cavity is a coelom. So coelom तो सब में है ही, but in mollusca cavity is a hemocoel because it store blood also. So answer of question number 20 I would say it's a C. Question number 21. Which one prefer to breed in clean water and its larva parallel to the surface of water? मतलब इनमें से कौन से क्लीन वाटर में ब्रीड करते हैं और लार्वा सरफेस वाटर पे आते हैं? तो ये है
एनोफिल्स, फीमेल एनोफिल्स, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में गए, ये सब इंसेक्ट के नाम है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, मतलब मॉस्किटो के नाम, एडिस मॉस्किटो, फ्लेबोटोमस, female anopheles mosquito. So Anopheles is the correct answer of question number 21. Moving towards the question number 22. Phylum Mollusca can be distinguished from the other invertebrates. Phylum Mollusca can be distinguished from other invertebrates by the presence of bilateral symmetry and exoskeleton. ये तो features काफी में हो सकता है. Shell and segmented body. Shell is there but segmented body is not there. मेटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडी, करेक्ट, इनके अंदर सेगमेंट्स नहीं होते हैं लेकिन मेंटल नाम के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज देयर. सो मेंटल एंड नॉन सेगमेंटेड बॉडीज प्रेजेंट इन दी फाइलम मोलस्का. सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी दी सी. क्वेश्चन नंबर 23. विच वन इज करेक्टली मैच? स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच. वेंट्रल सॉलिड, वेंट्रल नर्वस सिस्टम, आई थिंक ये करेक्ट तो लग रहा है, फिर भी हम आगे पढ़ते हैं. कॉकरोच, लोक्यूस्ट, टीनिया. एक्चुअली टीनिया सोलियम डज नॉट कम्स अंडर कॉकरोच कैटेगरी बिकॉज टीनिया सोलियम इज डिफरेंट एंड कॉकरोच बेसिकली बिलोंग्स टू अर्थ्रोपोडा. लिवर फ्लुक, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, बायलेटरल सिमेट्री नहीं. सेंटीपेड, प्रोन, सी उर्चिन. प्रोन ऑल्सो बिलोंग्स टू दी अर्थ्रोपोडा, सो यहाँ पे वो भी जॉइंटेड है लेकिन सेंटीपेड, उर्चिन, सी उर्चिन उसमें नहीं आएगा. सो स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच वी वुड से करेक्ट आंसर. यस, ए इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. माल्फिजियन ट्यूबुल्स आर देयर एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ इंसेक्ट. मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं, थोड़े क्वेश्चन के पहले मैंने आपको कहा था माल्फिजियन ट्यूबुल इज जनरली फाउंड इन इंसेक्ट, दे आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन, स्पेशली कॉकरोच में हमने देखा भी है. सो 24 आंसर क्वेश्चन इज ए. कंपाउंड आई ओकर इन इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा. अगर आपने कॉकरोच पढ़ा होगा तो कॉकरोच में आपने देखा होगा कि कंपाउंड आई इज प्रेजेंट इन कॉकरोच एंड कॉकरोच बिलोंग्स टू दी इंसेक्टा, इट मींस इट दैट बिलोंग्स टू दी आर्थ्रोपोडा. और कंपाउंड आई को कॉकरोच में हमने कहा है दैट इज वी जनरली कॉल्ड इट एज ओमेटिडिया. ओमेटिडिया मींस आई ऑफ कॉकरोच. यस, आर्थ्रोपोडा. तो यहाँ पे गाइस हमारे 25 क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट 50% हमारी जर्नी इस वीडियो की कंप्लीट हो चुकी है. होप सो आप लोगों को मजा आ रहा होगा और आपको क्वेश्चन का आंसर देने में काफी इंटरेस्ट आ रहा होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ. 2 कॉमन कैरेक्टर्स फाउंड इन सेंटीपेड, हनी बी, सिल्वर फिश, स्कॉर्पियन, कॉकरोच एंड क्रैब आर. सो एक्चुअली दे ऑल बिलोंग्स टू नियर अबाउट, they actually they are having jointed legs, yes, and plus they are having a yes, jointed leg is only feature present in A only, so they are having chitinous exoskeleton, correct. So A will be there. Green gland and trachea, green gland no. Book, lung and antenna, compound eye and anal surface. Compound eye may be present but in all of them compound eye is not present, but in all of them there is a jointed leg is present and chitinous exoskeleton. So A will be correct answer. Yes. Question number 27. Which one of the following statement is incorrect? हमें incorrect ढूंढना है. Yes. In cockroach and prawn, excretion of waste material occur through Malpighian tubule. Wrong. क्यों wrong? मैं आपको बताता हूँ. In cockroach, excretion takes place through Malpighian tubule, but in prawn, excretion takes place through green gland, selenocytes. Yes. तो ये माल्फिजियन ट्यूबुल प्रोन के साथ नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट आधा करेक्ट है और आधा रॉन्ग है, तो इसके लिए हम इसको रॉन्ग करेंगे. आगे पढ़ लेते हैं. इन टीनोफोर्स लोकोमोशन इज मेडिएटेड बाय कॉम प्लेट्स. यस, देयरफॉर दे आर कॉल्ड कॉम जेलीस और कॉम प्लेट्स. इन फेशियोला फ्लेम सेल्स टेक पार्ट इन एक्सक्रीशन. दैट इज आल्सो करेक्ट. अर्थवर्म आर hermaphrodite and yet cross fertilization takes place among them. अर्थवर्म hermaphrodite है लेकिन उनको एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करने के लिए कंपलसरी होता है बिकॉज उनकी बॉडी इस प्रकार से बनी हुई होती है. सो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हम देंगे ए. यस, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्वेश्चन नंबर 28. मैच द कॉलम 1 with 2. 1 with 2. नाउ अगर हम यहाँ पे मैच करें पोरीफेरा, पोरीफेरा में कैनल सिस्टम होती है. वाटर एंटर थ्रू ऑस्टी एंड गोज आउट थ्रू दी ऑस्कुलम. यस, तो यहाँ पे ए को फर्स्ट के साथ कौन मैच कर रहा है? यस, सी और डी मैच कर रहे हैं. यस,
देन बी एस्केल मीन्स मस्कुलर फेरिंग्स, एनिलिडा, देखो यहाँ पे अर्थ्रोपोडा का मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, और एनिलिडा में आएगा मेटामर्स, ठीक है। तो अब डी का देखिए, जॉइंटेड लेग, डी का फिफ्थ के साथ कहाँ मैच हो रहा है, तो डी का फिफ्थ के साथ कहाँ मैच हो रहा है, सॉरी यहाँ पे सॉरी उन्होंने फिफ्थ दिया हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली जॉइंटेड लेग है ना, यहाँ पे 4 है, ये आई यहाँ पे होना चाहिए, तो डी का फोर्थ भी यहाँ पे दोनों पे मैच हो रहा है। फिर हम अगर देखें ये इकाइनोडर्मेटा में वाटर वास्कुलर सिस्टम होती है, ई का सेकंड के साथ मैच हो रहा है, ये दोनों के साथ मैच हो रहा है, कंफ्यूजन काफी ज्यादा है। एनिलिडा सी का फिफ्थ के साथ मैच होना चाहिए, सी का फिफ्थ के साथ, तो यहाँ पे देखो मैच हो रहा है। सो ए फर्स्ट वन पोरीफेरा मैचिंग टू कैनल सिस्टम, बी एस्केल मीन्स मैचिंग टू दी मस्कुलर फेरिंग, सी एनिलिडा मैचिंग टू मेटामर्स, डी arthropoda matching to jointed legs, and E echinodermata matching to the water vascular system. So C will be correct answer. Yes, correct. ऐसे ही आपको मैच द कॉलम 1 और 2 में से आपको निकालने होते हैं। अगर आपको पांचों के पांचों नहीं आ रहे, एक्चुअली मुझे तो पांचों आ रहे थे, लेकिन मैं एज अ स्टूडेंट सोच रहा था कि अगर पांचों चीजें नहीं पता तो हमें 1 2 3 पता होनी चाहिए, तो हम एग्जैक्टली निकाल सकते हैं करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन मोलस्क body is covered with an external skeleton made up of, so in spongian fiber no, chitin no, calcium carbonate, calcium silicate, calcium carbonate से basically इनका मेटल बना होता है outer covering। क्वेश्चन नंबर 30, select the correct option of classification of Rana tigrina। तो राना टाइग्रीना में क्लासिफिकेशन कैसे आता है, कोर्डेट करेक्ट, वर्टेब्रेट करेक्ट, फिर ये आते हैं एम्फीबिया, तो एम्फीबिया ए और डी में मैच हो रहा है, फिर ये आते हैं नेथोस्टोमेटा, नेथोस्टोमेटा, टेट्रापोडा भी आएगा, टेट्रापोडा, लेकिन डायरेक्टली टेट्रापोडा नहीं आएगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उसे 30 का नेथोस्टोमेटा, आई मीन टू से सॉरी, कोर्डेटा वर्टेब्रेटा नेथोस्टोमेटा, कोर्डेटा वर्टेब्रेटा नेथोस्टोमेटा। यहाँ पे जो ए ऑप्शन है ना, ए में डायरेक्ट एम्फीबिया बताया हुआ है, वहां पे डायरेक्ट एम्फीबिया नहीं आएगा, कोर्डेट वर्टेब्रेट नेथोस्टोमेटा, यहाँ पे भी देखिए उन्होंने एम्फीबिया बताया, कोर्डेट वर्टेब्रेट नेथोस्टोमेटा, यहाँ पे भी एम्फीबिया बताया, एम्फीबिया सेकंड पे नहीं आएगा, ना ही वर्टेब्रेट आ सकता है, लेकिन यहाँ पे एम्फीबिया नहीं आना चाहिए, यहाँ पे भी नेथोस्टोमेटा होना चाहिए। सो कोर्डेट वर्टेब्रेट्स नेथोस्टोमेटा, यस, देन एम्फीबिया, देन स्पीसीज का नाम, जीनस का नाम राना, और उसके बाद स्पीसीज आएगी ये हमारी टाइग्रीना, तो हम आंसर इसका देंगे बी। क्वेश्चन नंबर 31, कोर्डेट डिफर फ्रॉम नॉन कोर्डेट्स, कोर्डेट इज हैविंग notochord, they are having dorsal nerve cord and they are having pharyngeal gill slits and they are having means all, तो इसका आंसर हम जाएंगे all की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, गोरिल्ला चिंपैंजी मंकी ह्यूमन बिलोंग्स टू सेम। अब गोरिल्ला चिंपैंजी मंकी ये स्पीसीज अलग है, इनके जीनस भी अलग हैं, मंकी एंड चिंपैंजी, इनकी फैमिली भी अलग हो जाती है, ये चारों के चारों एक किस में आएंगे, ये ऑर्डर में आएंगे, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू, हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना। Chordates have a ventral nerve cord, no, chordates have a dorsal nerve cord, all vertebrates have open circulatory system, no, हम vertebrates हैं, हमारे अंदर open थोड़ी ना है, हमारे अंदर closed circulatory, all chordates are vertebrates, no, all vertebrates are chordate but all chordates are not vertebrate, D, all vertebrates are chordates, so ये वाला ऑप्शन जो है वो वाला सही है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट, हम वर्टिब्रेट्स हैं लेकिन हम किसके अंदर में आते हैं, कोर्डेट्स कैटेगरी में आते हैं, सो डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। द एनिमल हैविंग नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ, सो एक ऐसा कौन सा एनिमल है जिसकी पूरी की पूरी लाइफ में हमें नोटोकोड अवेलेबल है, तो पूरी की पूरी लाइफ में एम्फियोक्सस है, अगर आप कोई देखना हो तो मैंने जो YouTube पे पढ़ाया हुआ है किंगडम एनिमल, आप उस चैप्टर में देख सकते हो, एम्फियोक्सस विल बी करेक्ट आंसर। प्रोबोसिस
gland in melanoglossus is associated with, तो proboscis किससे associated है? Digestion? No. Respiration? No. Reproduction? No. It is responsible for excretion. C आंसर आ जाता है 35 नंबर क्वेश्चन का. Scientific name of rohu is, rohu is a one type of a fish and its scientific name is a Labiorhoita. So D will be the correct answer. Jawless vertebrates belong to the group jawless. अब jawless जो होते हैं वो होते हैं अग्नेथा होते हैं अग्नेथा, और जो जॉफुल होते हैं वो होते हैं नेथोस्टोमेटा. तो इसका आंसर आई थिंक सो ए होना चाहिए, अग्नेथा. 38. विच वन ऑफ द बिलोंगिंग इज हेमिकोर्डेटा? हेमिकोर्डेटा, हेमी मीन्स हाफ, कोर्डेटा मीन्स कोर्ड. सल्पा नो. Balanoglossus is an example of hemichordata. 39. Bird and mammal share one of the following characteristics as a common feature. Bird and mammal. So birds don't have a pigment, we have a pigment. Birds have a pneumotactic bones in which they can store air, we can't store it. Viviparity. There are some mammal viviparous, there are some mammal oviparous also. There are some birds which are viviparous, there are some birds which are oviparous also. तो ये वाले तो मैच नहीं आ रहे, लेकिन बर्ड्स और हमारे अंदर कॉमन ये है कि उनका भी ब्लड है ना वार्म होता है और हमारा भी वार्म होता है. सो वी आर होमोथर्म्स, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल. सो डी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी? क्या बात है, एकदम मस्त क्वेश्चन है. ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी. अगर आप ये देखो, ऑस्ट्रिच इज एन अफ्रीकन बर्ड विच इज द टॉलेस्ट बर्ड इन द वर्ल्ड, which is very heavy. So due to their heavy weight, ostrich can't fly. Penguin generally found in an Antarctica region. They are birds, but they can't fly. Kiwi is also the type of a bird which generally found in New Zealand like country, and it is also can't fly. कीवी एक फ्रूट का भी नाम आता है, कीवी बर्ड्स का भी नाम होता है. तो ये रनिंग बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, फ्लाइटलेस बर्ड फाउंड इन डेजर्ट ओनली. सो इसका आंसर हो जाता है सी, फ्लाइटलेस बर्ड. Question number 41. Which is not detectable in birds? Pectoral girdle, pelvic girdle, forelimb, hind limb. अगर हम ये देखें तो जनरली बर्ड्स के अंदर फोर लिम्स नहीं होते हैं. तो ये हमने डिस्कस भी किया हुआ है जब मैं आपको पढ़ा रहा था. सो फोर लिम्स आर बेसिकली absent in birds and they are converting their four limbs into the wings. So answer question of 41 is C, four limbs. All mammals without any exception are characterized by, all mammals without any exceptions are characterized by viviparity and biconcave red blood cells. We are having biconcave blood cells, लेकिन सभी मैमल के अंदर RBC होते भी नहीं है और विविपेरिटी भी नहीं है सभी के अंदर. किसी में ओविपेरिटी, किसी में सेंग्यूवरस प्रॉपर्टी है, सेंग्यूवरस मार्सुपियल प्रॉपर्टी है. And second, extra abdominal testis and found 4 chamber of heart. No, there are some mammal which are having a 3 chamber of heart. There are some mammal like a whale fish, they are not having 4 chamber of heart. C, heterodont teeth and 12 pairs of cranial nerve. We have a 12 pairs of cranial nerve, but we can't give a guarantee that all mammal will have same. Muscular diaphragm and milk producing gland. Milk producing gland is very important because just because of milk producing gland we are mammals and we are also having muscular diaphragm. Correct. So D will be the correct answer. Question number 43. Proboscis gland are excretory organ of. तो proboscis gland कहाँ पाई जाती है? ये proboscis gland अगर हम देखें तो ये हेमिकोर्डेटा के अंदर पाई जाती है. So 44 का क्वेश्चन देखते हैं. In which of the following vertebrates नोटोकॉर्ड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ? नोटोकॉर्ड पूरी लाइफ में प्रेजेंट होते हैं. तो जनरली जो कार्टिलेजिनस जो फिशेस होती हैं, मतलब कॉन्ट्रीचिट्स, उनके अंदर नोटोकॉर्ड पूरी की पूरी लाइफ में होते हैं. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 45. मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स इज प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, हार्ट इज 4 चेंबर, प्रेजेंस ऑफ लंग्स एंड ऑल ऑफ अबव. यूनिक मैमेलियन फीचर्स, यहाँ पे देखिए लंग्स तो प्रेजेंट है ही,
हमें यहाँ पे उन्होंने पूछा यूनिक फीचर्स, प्रेजेंस ऑफ लंग्स सही है, लेकिन प्रेजेंस ऑफ लंग्स इज फीचर ऑफ ह्यूमन बीइंग, नॉट अ ब्लू फिश, ब्लू व्हेल फिश। यस, तो कुछ एनिमल हमारे जो पानी में भी हैं, मैमल होते हैं, तो उनके अंदर लंग्स नहीं होंगे। हार्ट इज 4 चैम्बर, नहीं। मेमोरी ग्लैंड इज कंपलसरी, ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्लेस्पर्स आर प्रेजेंट इन, तो क्लेस्पर्स कहाँ पे पाए जाते हैं? क्लेस्पर इज एक्चुअली वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन। Clasper is a one type of sex organ which is found in a cartilaginous fishes, means chondrichids. So A और B में से ऑप्शन होगा, but it is present in the pelvic fins. A is correct answer. Question number 47, फिर से हमें मैच द पेयर करना है, तो limbless reptiles, limbless reptiles, पाइथन, अजगर limbless होते हैं। फिर jawless vertebrates, जिनको जो नहीं होते हैं वो कौन होते हैं? फ्लाइटलेस बर्ड्स, देखो यहाँ पे कौन है? फ्लाइटलेस बर्ड्स इज पेंगुइन एंड, और ये लैम्प रे और इलेक्ट्रिक रे जो है वो फाइंड आउट करना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ट्री फ्रॉग विल बी एम्फीबियन, तो आप वन बाय वन मैच करो। ए लिम्बलेस रेप्टाइल मस्ट बी मैच टू सी पाइथन। सो यहाँ पे देखिए बी, सी और डी तीनों में ए का थर्ड के साथ मैच किया हुआ है। फिर देखिए जोलेस वर्टिब्रेट्स, जोलेस वर्टिब्रेट्स, आप इसे छोड़िए फिलहाल। एम्फीबियन देखिए सी, सी एम्फीबियन इज ट्री फ्रॉग, सी मस्ट बी मैच टू सेकंड, तो सी यहाँ पे सेकंड यहाँ पे मैच हो रहा है, करेक्ट। फिर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ई, ई मस्ट बी मैच टू द पेंगुइन, करेक्ट। सो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाता है 47 का सी, करेक्ट। 48, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ 3 एनिमल्स ईच इज करेक्टली मैच विथ देयर वन कैरेक्टर मॉर्फोलॉजिकल फीचर, तीनों में से एक कैरेक्टर मैच करना ही चाहिए। सेंटीपेड, प्रॉन, सी उर्चिन, जॉइंट एपेंडेजेस, ये एक सेम कैटेगरी में नहीं आते हैं। कॉकरोच, लोक्यूस्टा, टीनिया, ये शायद हमारा क्वेश्चन एक बार हो चुका है हमारा। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल नर्व कॉर्ड, लिवर फ्लूक, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, बायलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन नहीं हो चुका है, ऑप्शन से नियर अबाउट सिमिलर थे, हमारा डी आंसर हो जाता है यहाँ पे। दे ऑल आर हैविंग बायलेटरल सिमेट्री। सी कुकुम्बर they get divided into 2 parts, C anemone also divided into 2 parts, liver fluke also divided into 2 parts by vertical section. Question number 49, correct characteristics of class reptilia. Reptilia, fresh water animal with bony endoskeleton, air bladder to regulate buoyancy, नहीं, फ्रेश वाटर में जनरल पाए जाएंगे रेप्टिलिया, ऐसा नहीं। मराइन एनिमल विथ अ कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, बॉडी कवर्ड विथ अ प्लेकोइड स्केल, placoid and tenoid scale are the features of fishes, not the reptilia. Body covered with a dry cornified skin, scales over the body of epidermis, and they do not have external ear. External ear मतलब बहरे कौन होते हैं? सांप होते हैं, तो सांप है रेप्टिलिया। Body covered with a moist skin which is devoid of scale. Ear is represented by tympanic, alimentary canal, urinary and reproductive tract open into the common cloaca. इसका आंसर सी हो जाएगा, करेक्ट। Sponges capture the food through the, तो मैंने आपको कहा sponges capture the food through the coinocyte just because sponges are porifera, तो इसका आंसर हो जाता है यस, इसका आंसर हो जाता है ए। सो ये था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर में से 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू related to the NEET exam preparation. So thank you so much guys for watching this video. This topic was chapter 4 Animal Kingdom 11 standard CBSE NEET, 50 most expected MCQ for NEET preparation. To pass this NEET you must watch this because ये वीडियो ही नहीं एक सक्सेस का फॉर्मूला है। Yes, thank you so much, have a good day.
थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारे वीडियो एंड तक देखा। ऐसे ही हमें ढेर सारा प्यार देते रहे और हमसे नॉलेज गेन करते रहे। मैं आप लोगों से फिर से एक बार दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँचते रहे। लोग सब्सक्राइब करने में काफ़ी कंजूसाई करते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन करने के लिए कुछ पैसे नहीं देने होते। ये सिर्फ आपको, अगर आप एक सब्सक्राइब हमारा बढ़ाते हो तो जैसे ही हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं हमारे अंदर और वीडियो बनाने की इच्छा होती है, एक्साइटमेंट और बढ़ती है और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी वीडियो बनाएं आप तक सबसे पहले पहुंचे। Thank you so much for watching this video. Please share this video with your friends in circle, those who are also related to the biology field. Thank you so much. Have a good day.